So first of all, very warm welcome to all of you for this webinar. I mentioned that it is being organized by Winners of Spirituality. We are an informal group here in Washington West, but three of us. But we have founder member Dr. Anil Bhattacharjee is from New Jersey. So and people from all over USA and India join here. We organize programs on issues concerning spirituality. It is non-political, neutral, and we support the points of view which make sense for the humanity as a whole. Of course, we are born as Hindus, and we want to understand more about Sanatana Dharma and Hinduism. So, in that, and yoga and other philosophies, related philosophies. So, we organize webinars on these kind of issues. First of all, to educate ourselves and spread these messages to those who are interested. Yeah, but eventually, I think we should take up these issues involving policies to the appropriate policy makers, but we'll do that gradually. Maybe on. So we are indeed privileged to have Honorable Shri Arya. So we are really privileged to have Honorable Shri Arya Raviday Gupta as the keynote speaker today on the subject of Sanatana Dharma, which is the eternal truth of Hinduism. Shri Gupta ji comes with a remarkably deep understanding of Vedic, Sanatana Hindu philosophies and practices. As mentioned in the invitation for this seminar, Shri Gupta has worked for years as the chairman or president of Ekal Vidyalaya Foundation of India, the Hind Punarutthan Sangha, and Dakshin Delhi Veda Prachar Mandal. He is also a general secretary of Veda Samsthan of New Delhi. Besides, he has been an Arya missionary and Kathakar on Ramayana, Mahabharata and Vedic scriptures. So we cannot have a more authoritative and knowledgeable speaker like Sri Gupta to talk on the subject of Sanatana Dharma, which means without beginning or end. It is there forever. Sanatana Dharma is something which is without beginning and without end. And traditionally, Hinduism is known as the Sanatana Dharma. We must thank Dr. Anil Bhattacharjee, the founder member of this Universe of Spirituality group, for introducing Sri Gupta to us. The credit goes to us. He has been in contact with for a long time, and he suggested that we organize this webinar with Mr. Gupta as the keynote speaker. So, Sri Gupta's presentation today is happening, as you know, at a time when some politicians in India, including DMK leader I mentioned in the invitation, Sri Udayanidhi Stalin, are publicly saying that the Sanatana Dharma be eradicated. I mean, he is reported to have said that a few things cannot be opposed but need to be eradicated. And after Udayanidhi's eradicate Sanatana remark, another DMK leader and member of the parliament, Mr. Senthil Kumar, made a statement in the parliament grossly insulting the Hindu community at large, that India's Hindi-speaking state, namely Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, which recently elected BJP to the power, as Gaumutra states. So he's calling the states of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh because they elected BJP. But there is something misunderstanding about Sanatana Dharma. We'll come to that. The idea of Sanatana Dharma gets into these unfortunate controversies that are largely based on some kind of biases, misinformation, misunderstanding, or motives, and not infrequently politics. Not only in India, but across many other countries, this happens. In this context, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, recently urged that people of India should not get misled by the attacks on Sanatana Dharma, which has kept India together for thousands of years. He remarked that while India is trying to be at the center stage in uniting the world, playing the role of a Vishwamitra, the people attacking Sanatana values, culture and traditions are trying to divide the country and its society. So this has to be taken very seriously, the whole issue. But today's webinar is not intended to discuss the politics in India or elsewhere.
about Sanatana Dharma, but to understand on our part what Sanatana Dharma is about and what it is not in the present context, in the prevailing context. This is critical it is critical to stay informed about the right narrative and be prepared to respond effectively to any undue, undesirable comments, criticisms, misinformation, misunderstanding that goes around about Sanatana Dharma. Because we are trying to understand that ourselves. We are born in Sanatana Dharma as Hindus. So we should understand our religion more clearly, more thoroughly, and we should be able to respond to any criticisms. And secondly, the evolution of Indian society from the early days of Sanatana Dharma, including the Manusmriti, to the present, it has been very complex and multifaceted, and we should understand that. We should understand the evolution of society as one theme and philosophy of Sanatana. As for the philosophy of Sanatana Dharma, it is stated in one sentence, in one of the books written by, produced by the Hindu University of Banaras Hindu University. It says the self is one. Self is one. There are many selves in appearance, but in ultimate analysis, there are all reflections of one. So whatever separateness is temporary, we see is temporary, but their unity is eternal. And that is precisely the philosophy of Sanatana Dharma. And Dr. Gupta will talk more about it. In unity, there is neither I nor you. In Bhagavad Gita, this philosophy is very beautifully explained in chapter 6, verse 9, which says, Sarva bhutastam atmanam, sarva bhutani chatmani, ikshate yoga yuktatma, sarvatra samadarshana. True yogis, uniting their consciousness with God, see with equal eye all living beings in God and God in all living beings. I mean, this is an amazing statement. And that's what Sanatana Dharma is about. And that is what I should talk about, we'll talk not the caste system or how women are treated. I will come to that. So this is the philosophy of Sanatana Dharma. That's the foundation. Its foundation is mainly Advaita. And that was reinforced by a series of Upanishads and later by Adya Shankaracharya. That made Sanatana Dharma, Hindu Dharma, tolerant of each other, irrespective of their color, creed, caste, religion, language, gender, nationality, and so on. Given this philosophy, India or Bharat is still there, home for one and all who regarded themselves as Hindus, without any conversion, any kind of conversion. Hinduism doesn't believe in conversion. Everybody is Hindu, so long as he believes the oneness of the universe, this Advaita philosophy. The caste system or rituals for that matter, or any other externalities have no place in Advaita philosophy, the key element of Sanatana Dharma. And I will request Mr. Gupta ji to explain to us, how it gets manifested in our day-to-day life, in social life, in cultural life. The Vedic period, 1500 before Common Era, 1500 to 500, laid down the foundation for classic Sanatana Dharma with the composition of Vedas and the establishment of social norms and the rituals. Manusmriti, I think it came later, some 500 to 1000 years later than Vedas. I don't know, may correct myself if I'm wrong. It is said, it cannot be associated directly with Hinduism, although it is being practiced by Hindus. See, the evolution of Indian society has been happening for centuries, even before the Vedas were formed. The Vedas were told or written, they were not written, but they were told. Since then, Indian society underwent important changes during Maurya and Gupta empires, 322 BC, etc., medieval period, Mughal Empire, British colonial period, independence and post-independence era India, 1940 to present, and even contemporary. Throughout this throughout this period, two issues have confronted the Indian society. One is the caste system, which was initially elastic enough, flexible. People had choice which vocation to choose, but later it became very rigid. That was during Maurya and Gupta empires. Before that, it was very flexible. And the second issue, the first issue is caste system, and that is why
Sanatan Dharma gets criticized that it created caste. And the second is the role of women in the society, how they are treated, uh, or how they are, how they can, how they, the framework for living their lives. So these issues were primarily the concerns of Indian society as it evolved, with the philosophy of Sanatan Dharma, that is the self is one, remaining constant. So we are making a distinction between philosophy and the societal evolution, including caste system and how women are treated, their role. And these issues of feudalism and how women are treated are not unique to Indian society. It has been there in every country, even in United States. It took century for women in United States to get a voting right. So this is a process of evolution, and it should not be confused with the philosophy of Sanatana Dharma. And I would like Gupta ji to tell us more about this. Finally, final point, India is now undergoing rapid urbanization and technological advancement, contributing to changes in lifestyle and values. Social issues such as caste system and gender inequality persist, but there are ongoing efforts to address these challenges. You see, we have Hindu law in place where women have equal rights to property. We have Succession Act, we talked about it. We have Marriage Act. So reforms are taking place. India remains a diverse, yet all this said, then India remains a diverse and pluralistic society with various religions, languages, and cultural practices coexisting. Throughout this journey, India has experienced a dynamic interplay or continuity and change, blending traditional values with modern influences. The societal transformation reflects the complex tapestry shaped by historical, cultural, and socio-political factors. So again, this background, I want to request Gupta ji to please begin his presentation and enlighten us how India should go forward, building upon its heritage of Sanatana Dharma in terms of its philosophy, in terms of its practices, and how we should maintain its sanctity and sustenance. Thank you for everybody. And Gupta ji, please begin your presentation. I pose the issues we are confronted with. Thank you. I greet everybody whosoever has joined this seminar today. And in the first place, I would like to express my gratitude towards my friend Dr. Anil Bhete, who has brought us together. And then my gratitude to Shri Ramesh Deshpande, who is a veteran and living in his states, still connected, staying connected with his roots in India. And the rest of all, whosoever has joined on my invitation or their invitation, I greet them all. When introducing the subject, in fact, you have referred to a very vast spectrum of what Sanatan connotes. And one important issue that you have raised, that Manu Smriti must have been written much after Vedas, that is true. Because Smritis, Upanishads and all these are only, I should say, the clarification of those principles which Vedas have connoted in themselves. So ultimately, Vedas are the original scriptures that probably the Almighty gave to the humanity through certain ages. Now this subject is very vast, very interesting, and as you say, it is confronting so many challenges. But so far as challenges are concerned, I feel the kites rise high only when against the wind. So there is nothing to be worried about it. The more challenges there are, probably we will rise a little higher. Now, friends, since this subject is very close to my heart and to your heart also, I have preferred to speak in my own native language so that we can understand things in greater depth. Because whatever we try to make understand and try to understand in a
converted language, and we are already allergic to conversion. So why should we go to certain adopted language when we have our own? So with your permission again, now I would like to start in my own native language. Absolutely, sir. Yes. जब सनातन की बात आती है बंधुओं, तो सनातन का अपने आप में ही एक स्पष्ट अर्थ है, जिसका आदि है ना अंत है। इसलिए उसको अनादि भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं। और जब आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि वो उस समय में आरंभ हुआ है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ होगा। हम सबको ये मालूम है, सनातन की बेसिक जो डेफिनेशन है कि जो सदा ही अपरिवर्तनीय हो, इनकन्वर्टेबल, मूल रूप में रहने वाला हो, मतलब अपने ओरिजिनल शेप में रहता हो और नित्य स्थायी हो। अगर देखा जाए तो ऐसी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, वो है परमात्मा। तो इसलिए परमात्मा की जो सत्ता है वो सनातन है। सनातन के लिए अथर्ववेद में एक मंत्र बोला है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आज रेलेवेंट है, मैं कोट कर रहा हूं आपके सबके बेनिफिट के लिए। सनातनम एनम आहु उत अद्य स्यात् पुनर्नवः। इसका अर्थ क्या है कि जो नित्य नूतन होता जाए उसको विद्वान लोग सनातन कहते हैं। आप और मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम उस विद्वान की श्रेणी में आते हैं, और हम इस बात को ही आज जानने के उत्सुक हैं कि सनातन क्या है। सबसे पहला तो मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि जब हम इंग्लिश भाषा में रिलीजन शब्द बोलते हैं, तो मैं आप सबको बड़े आग्रह से ये कहना चाहता हूं कि रिलीजन शब्द जो है, इट्स अ वेरी पुअर ट्रांसलेशन। ये धर्म का पर्यायवाची नहीं है। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसका किसी भी दुनिया की भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उसका ट्रांसलेशन संभव ही नहीं। इसलिए रिलीजन क्या होते हैं, वो जो मैन मेड होते हैं, और धर्म एकमात्र है जो ईश्वर का बनाया। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों के मन में ये बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, इवन while living in an alien country, you may be talking in terms of religion, but you should know it from your heart of heart that you are not talking about your dharma. पहली बात अगर ये समझ में आ जाएगी तो हमारे को विषय बड़ा स्पष्ट होता है। दूसरा मेरा एक निवेदन है, इट मे बी आउट ऑफ प्लेस ऑल्सो एंड आउट ऑफ बॉक्स ऑल्सो। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम धर्म को धर्मा बोलते हैं। अधिकांश लोग हम संस्कृत जानते हैं, ये मालूम है कि जब आ लगाते हैं तो आकारांत से स्त्रीलिंग होता है, फेमिनिन जेंडर होता है। पर हम लोगों के अंदर में एक स्वाभाविक है, एक ऐसी हमारी थोड़ी असावधानी है कि हम धर्म को धर्मा बोलते हुए कोई संकोच नहीं करते। और अगर भगवान राम का भी नाम लें तो रामा बोलते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, तो क्या समझ नहीं आता कि ये सब स्त्रीलिंग हो जाता है। हम इंग्लिश भाषा के बोलने में तो बहुत सजग हैं कि उसका उच्चारण क्या होना चाहिए। आपके यहाँ सैन जोश लिखा जाता है, उसको सैन होजे बोलते हैं, उसमें तो वी आर वेरी पर्टिकुलर। बट व्हेन कमिंग टू अवर ओन स्क्रिप्चर्स एंड अवर ओन टर्मिनोलॉजीज, वी आर सो लिबरल कि हम जानते नहीं कि मूल स्वरूप क्या है। आप लोग क्षमा कीजिएगा, मैंने ये बात जो है थोड़ा आउट ऑफ प्लेस कही है, लेकिन बहुत आवश्यक थी इसलिए कही। तो हम कोशिश करें कि हम अपने शब्दों को मूल स्वरूप में बोलें। अब सनातन धर्म की जो बात आती है, देखिए दो चीज होती हैं संसार में, जितनी भी मान्यताएं हैं, हमारे मान्यताएं का मतलब हमारे बिलीफ्स, वो रोज नए जन्म लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को कर्म योनि में भेजा है और कर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया। तो हम क्या करते हैं, हमारे को बुद्धि का संयोग दिया है, तो हम बुद्धि का उपयोग भी बहुत करते हैं, और करना भी चाहिए, ईश्वर ने दिया इसीलिए है। लेकिन समस्या क्या आती है कि हम बुद्धि का सदुपयोग के बजाय जब दुरुपयोग करने लगते हैं तो विकास के बजाय विनाश की ओर अग्रसर हो जाते हैं। पर ये हमारे अपने कर्म का वो है, और इसके लिए ईश्वर हमको अच्छे कर्म के पुरस्कार और दुष्कर्म के दंड भी देते ही रहते हैं। उसके बहुत प्रकार हैं, वो हम रोज देखते हैं। यही जो बीच में कोरोना आया था, आप लोग समझिए, ये सारी मानव जाति को एक दंड देने का ईश्वर का एक विधान था। इस प्रकार के आते रहते हैं। फिर मैन मेड जितनी भी हॉलोकॉस्ट हैं वो तो हम रोज ही देखते हैं, क्योंकि वो बुद्धि का एक प्रकार से दुरुपयोग है, जिसके कारण से आज
विनाश हो रहा है और सारी की सारी मनुष्य जाति एक दूसरे के खून की प्यासी हो रही है। रोज हम रशिया और यूक्रेन में यही देखा है और आज इजराइल और हमास के बीच में भी यही हो रहा है। रोज नया एक ऐसा ढूंढने की कोशिश हो रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कलेक्ट किए जाए। आज का हमारा इश्यू नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये जो सनातन शब्द है इट्स एन एडजेक्टिव, ये विशेषण है, ये अपने आप में नाउन नहीं है। इसको किसी के साथ में प्रेफिक्स करके लगाया जाता है। तो सनातन क्या चीज हो सकती है? सनातन सबसे पहले तीन ही चीज होती हैं जो वेदों में लिखी हैं। पहले मैं वेद के बारे में थोड़ा सा दो वाक्य बोलूं आपको। वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, इसलिए इनको प्राचीनतम पुराण की भी संज्ञा दे सकते हैं। पुराण का अर्थ है पुराना। तो जो प्राचीनतम ग्रंथ है जिसके बारे में किसी तरह का कोई विवाद संभव नहीं है वो वेद है। और ये वेद कब लिखे गए हैं? लिखे तो बहुत देर में गए हैं, लेकिन वेदों का प्रकाश ये सृष्टि के आदि काल में जब मानव जाति का निर्माण किया ईश्वर ने, उसी समय में उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में ये उन्होंने कुछ ऋषियों के माध्यम से प्रकाशित कर दिए हैं। इसलिए इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये ईश्वर का हमारे लिए आदेश है कि आपको मैंने मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, अब मनुष्यता के जो धर्म हैं वो मैं आपको वेद के रूप में बताने की इच्छा रखता हूं। स्वाभाविक है, हम देखते हैं जब कोई भी व्यक्ति, कोई मैन्युफैक्चरर अपना कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसके साथ में एक यूजर्स मैनुअल भी साथ में देता है और ये बताता है कि आपका है इस मशीन को डिजाइन किया है, इसका एक्सपेक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ इतना है और अगर आपको इस यूजर्स मैनुअल के हिसाब से इसको यूज करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड लाइफ मिलेगी। तो ईश्वर ने तो जो हमको मनुष्य योनि में भेजा है, हमारा भी एक्सपेक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ 100 और 120 ईयर्स कहलाया जाता है। तो उसको कैसे हम अपने जीवन में 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर जी सकते हैं, उसके लिए संपूर्ण विधान जो दिया गया वो वेदों में दिया गया। और केवल हम नहीं जिएंगे, सारी मानवता जिएगी, उसके लिए उसके अंदर में बहुत से आधारभूत मान्यताओं को जो निर्धारित किया गया उसी को हम धर्म की संज्ञा देते हैं। क्योंकि ये सृष्टि के आदिकाल में वेदों के माध्यम से हमको मिला, इसलिए वो सनातन धर्म है। अब ईश्वर सनातन है, इसमें तो कोई संदेह का कारण नहीं, लेकिन सनातन ईश्वर ने दो चीज और उत्पन्न की है। हम कहते हैं सृष्टि का निर्माण किया है। ये सृष्टि क्या है? इस सृष्टि के अंदर में दो एलिमेंट्स हैं, एक है चेतन तत्व और एक है जड़ तत्व। जो चेतन तत्व है वो आप और मेरे जैसी सारी जीवात्माएं, केवल एक मनुष्य योनि नहीं है। हम तो 84,000 योनियों की बात करते हैं। 84,000 भी नहीं तो कितनी भी हैं, असंख्य हैं, ना हम गिन सकते हैं, ना गिनने की हमें आवश्यकता है। असंख्य योनियों में ईश्वर ने अपनी कृपा से प्रकृति के 5 जो 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत तत्व कहते हैं, उनसे निर्मित शरीरों में जीवात्मा का प्रवेश करा के प्राणियों को जन्म दिया। आप देखिए मेरे इस वाक्य के अंदर में ये सारा का सारा दर्शन छिपा है। ईश्वर ने जड़ सृष्टि का निर्माण किया है और चेतन सृष्टि का निर्माण किया। उस चेतन सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ जो ईश्वर की कृति है वो मनुष्य है। अब मनुष्य की जो परिभाषाएं हैं वो तो वेद में लिखी हैं। हम लोगों ने आज उसको मनुष्य की परिभाषाओं को बिल्कुल इस प्रकार से एक ऐसा कर दिया है कि जिसके आंख नाक हैं, हाथ पैर हैं, कान हैं, बस वही मनुष्य है। लेकिन वो तो राक्षस भी हो सकता है। तो प्रश्न ये है कि मनुष्य तो उसी को कहेंगे जो मननशील हो, और मननशील होके खाली अपने ही सुख सुविधा के और जीने के साधन नहीं ढूंढता हो, दुनिया में सबके सुख साधन और जीवन के अभिलाषा भी रखता हो। तो जो लिव एंड लेट लिव, अगर ये है तो ये मनुष्यता का पहला लक्षण है। अब ये जो मनुष्यता का लक्षण है, इसको लोग ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ये तो बड़ी विलक्षण बात है। ये तो मानव जाति के अस्तित्व की पहली आवश्यकता है कि अगर आप जिएंगे तभी जी पाएंगे जब आप अपने पड़ोसी को जीने देंगे। और यदि आप उसके मारने की और उसके विनाश की कल्पनाएं कर रहे हैं तो बहुत संभव है वो भी आपके विनाश की कल्पनाएं कर ही रहा होगा। नहीं कर रहा होगा तो करना शुरू करेगा, तो फिर ना आपका अस्तित्व रहेगा ना उसका अस्तित्व रहेगा। तो ये तो एक म्यूचुअल डिपेंडेंस है और इसके बारे में कोई बहुत बड़ा इसको हाईलाइट करने का
या ग्लोरीफाई करने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है। पर ग्लोरीफाई क्यों करना पड़ता है कि आज कोई भी व्यक्ति जरा सी भी कोई मानव धर्म से जुड़ी हुई बात करता है तो कहते हैं ये बड़ा धार्मिक है। धार्मिक नहीं है, इट शुड बी ए वे ऑफ लाइफ। तो ये हमारे लिए कोई एक्सेप्शनल नहीं है, हमारा रूटीन होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि नूतन किसको कहेंगे और पुरातन किसको कहेंगे। जो मान्यताएं आपके और मेरे मन में जन्म लेती हैं, और मुझे लगता है कि मैं बड़ी लॉजिकल बात कह रहा हूं, तो मैं एक नया कल्ट स्टार्ट कर देता हूं। कुछ लोग जो उसके साथ एग्री करते हैं वो मेरे फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो एक नया पंथ निर्माण हो जाता है। पंथ का मतलब है रास्ता, एक रोड। अल्टीमेटली लक्ष्य सबने एक ही निर्धारित किया हुआ है कि हमको अंततः ईश्वर को प्राप्त करना है। और ईश्वर को प्राप्त करने का जो हमारे यहाँ पे शब्द आता है 4 पुरुषार्थों में, उसको हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का अर्थ केवल यही है कि सदैव के लिए आवागमन से मुक्त होकर ईश्वर की ही गोद में हम आनंद पूर्वक हमारी आत्मा रह सके। लेकिन ये तो केवल एक काल्पनिक विषय है, क्योंकि ये हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन व्यवस्था जो है वो ईश्वर की है। उसने किसको मोक्ष देना है, किसको नहीं देना, ये वो स्वयं दयालु भी है, न्यायकारी भी है, और अंतिम निर्णय भी वही करता है कि कौन इस व्यक्ति को, जिसको अपने कर्म फल का भोग देना है, उसको पुनर्जन्म के माध्यम से फिर सृष्टि में भेजता है। तो यहाँ पे एक विचारणीय विषय ये आता है कि रोज मेरी मान्यताएं जब बदलती हैं, तो मैं मनुष्य के रूप में, एक विद्वान मनुष्य के रूप में अपनी मान्यताओं को स्थापित करने के लिए एक नया, एक पंथ निर्माण करता हूं। या वो मेरा मत होता है, मत का मतलब है मेरी राय, मेरा बिलीफ। तो जब एक मत मैंने बनाया, फिर आपने, मुकुंद जी ने, मुकुंद पुराणिक जी मेरे मित्र हैं, वो कहे नहीं भाई साहब ये मेरा मत नहीं है, मेरा मत तो ये है, तो मैं कहूंगा आपका मत भी ठीक है, चलिए दोनों मतों के साथ में हम कोएग्जिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो क्या हुआ, एक मत से मतांतर हो गया। तो आज जो हम विश्व में देखते हैं कि कुछ लोग धर्म की बात करते हैं और कुछ मत मतांतर की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक हमारा इसके अंदर में एनालिसिस है, जो आपको और मुझे सबको समझना है, जो ईश्वर ने हमारे लिए बना के भेजा था वो धर्म था, और जो हम लोग रोज नए बनाते हैं वो पंथ होते हैं, वो मत होते हैं, और इसलिए उनमें अंतर होने के कारण वो मत मतांतर की श्रेणी में आते हैं। अब जरा सा ये ध्यान कीजिए, आपने कहा कि मनुस्मृति, ये मनुस्मृति तो वेदों के बहुत बाद में लिखी गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो आदि मनु हुए हैं, उन्होंने जब ये देखा कि वेदों की जितनी भी मान्यताएं हैं उनका हमने, जैसे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो उसके साथ में एक सिविल प्रोसीजर कोड भी होता है। तो एक पीनल कोड जैसे आईपीसी है, और एक उसके साथ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक इसी प्रकार से सिविल प्रोसीजर कोड। हमने उन सारे सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए किन नियमों का पालन करना है, उसको मनुस्मृति के अंदर संजोया गया। तो मनुस्मृति का अर्थ ये हुआ कि वैदिक मान्यताओं के अनुसार हम अपने जीवन को किस प्रकार से संचालित करें। तो मनुस्मृति स्वाभाविक है, वो तो एक प्रकार की है, कुंजी है वेदों की, जो मनुस्मृति के रूप में बाद में मनुष्य मात्र के लिए बनाई गई है। अब वेदों को भी हम ये जानते हैं कि वेद ये ओरली डिक्टेट हुए थे, और बाद में एक दूसरे पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियों ने एक दूसरे को केवल बोल के सुनाया, इसलिए उनको श्रुति बोलते हैं। श्रुति का मतलब है जो सुना जाता है, और श्रुति करके जो कोई लिखा जाता है उसको श्रुति लेख बोलते हैं। तो वेद को श्रुति इसलिए बोलते हैं कि ये वर्षानुवर्ष बहुत संख्या तक ये चूंकि श्रुति के रूप में रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसमिट होते रहे ओरली। और बाद में व्यास जी ने, व्यास कोई व्यक्ति नहीं है, ये व्यास का अर्थ है जो किसी भी चीज को लिखित रूप दे उसको हम व्यास की संज्ञा देते हैं। कोर्ट के अंदर जिसको हम मुहर्रिर बोलते हैं वो भी एक प्रकार का व्यास होता है। हर ऑथर जो एक विषय को लिखित आकार देता है वो व्यास की श्रेणी में आता है। और जब विद्वान किसी उस पर मंच पर बैठकर बोलता है तो इसलिए हम उसको व्यासपीठ कहते हैं। तो हम लोग ये समझें कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये जेनरिक वर्ड्स हैं, और इन जेनरिक वर्ड्स को हम लोगों ने क्या किया है, हमने इसको पर्सोनिफाई करके किसी ना किसी एक व्यक्ति के साथ चिपका दिया। तो जब हम कॉमन नाउन को पर्सनल नाउन बनाने लगते हैं बंधुओं,
तो वेदों की मान्यता के आधार पे ही पुराणों की रचना होने लगी, क्योंकि उन्होंने हर कॉमन नाउन को पर्सनल नाउन बना के उसका ऐसा एनिमेशन किया कि अगर बोला कि ये ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी जैसा एक व्यक्ति बना दिया। उन्होंने कहा ये ईश्वर इसको पालते हैं विष्णु के रूप में, तो उन्होंने विष्णु जी का भी एक पर्सोनिफिकेशन कर दिया। ये कहा गया कि वो संहार भी करते हैं कल्याण के लिए, और वो क्या होता है, वो कल्याण, और कल उसके लिए शिव शब्द है, तो उन्होंने एक शिव जी की भी कल्पना की। तो जब हम किसी भी जेनरिक उसका बार बार उसको बनाते जाते हैं, तो ये ब्रांडिंग करते जाते हैं। और ब्रांडिंग करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर बहुत से आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे जन्म लेने लगते हैं। सनातन का जब शब्द वापिस आता है, तो मैं उसी को क्लैरिफाई करने के लिए ये भूमिका के रूप में आपको बताया है कि जब मेरी मान्यताएं नूतन रोज पुरातन होती जाती हैं, तो उसके बीच में भी ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जो ना नूतन होती हैं ना पुरातन होती हैं, वही सनातन होती। अगर इन चीजों को हम समझ जाएं, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि सनातन ऐसा है, जैसे हम बोलते हैं कि गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है, लेकिन अगर गंगा का पवित्र रूप देखना है तो आपको गंगोत्री जाना होगा। जब आप गंगा को हुगली में देखते हैं, तो नाम तो उसका गंगा है, लेकिन उसके अंदर में वो स्वरूप कोई नहीं है जो गंगा के लिए जाना जाता। तो गंगा की गंगोत्री से हुगली तक की यात्रा ऐसी है जैसी सनातन धर्म की आज के दृष्टि के अंदर में यात्रा। सनातन का ढोल तो हर कोई दुनिया पीट रही है, और जब सनातन के बारे में कोई अपशब्द बोलता है, जैसा आपने बोला कि तमिलनाडु के अंदर में बहुत से दुष्ट लोग, वो भले ही मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, लेकिन दुष्ट हैं तो दुष्ट हैं, वो हमारी दृष्टि में तो राक्षस की श्रेणी में आते हैं। लंका में अगर रावण था, तो आप और मुझ जैसा ही बड़ा सुंदर व्यक्तित्व का था, शायद उसका व्यक्तित्व हमसे भी ज्यादा सुंदर था। रामलीला का जब मंचन देखते हैं, तो सबसे सुंदर व्यक्तित्व कोई किसी व्यक्ति का दिखता है तो वो रावण का दिखता है, लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि अंततः वध इसी का होना है। तो मैं भी आज ये बड़े आश्वस्ति के भाव से आप लोगों को भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि रामायण की पुनरावृत्ति का काल आ गया है। आज जो लोग इस सनातन के ऊपर में किसी भी प्रकार का निंदा करके कीचड़ उछालना चाह रहे हैं, ये उनकी अपनी जो दुष्ट प्रवृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति है। अंततः इतिहास साक्षी है कि वध तो उन्हीं का होना है। हाँ, हमको श्री राम की तरह संघर्षशील होके उस लंका पर आक्रमण तो करना होगा। तो आज इसके अंदर में चिंता का कारण नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि इस सृष्टि के अंदर में तीन ही अनादि सत्ताएं हैं, और ये वेदों के अंदर लिखी गई हैं। इसको बाद में कभी जब महर्षि दयानंद ने इसको कोडिफाई किया, तो उन्होंने इसको त्रैतवाद की संज्ञा दी कि तीन प्रकार की सत्ताएं होती हैं, और उसका स्पष्टीकरण मेरी बातचीत में आप लोगों के सामने आ भी चुका है कि परमात्मा जो है ये वास्तव में सनातन है, क्योंकि वो परम आत्मा है। उसके अंतर्गत जीवात्माएं हैं, और वो जीवात्माएं जो हैं वो एक प्रकार की चेतन सृष्टि का अंग है। उसके अतिरिक्त प्रकृति का बनाया है, निर्माण किया है, वो भी परमात्मा ने बनाया। तो परमात्मा की व्यवस्था से जड़ सृष्टि के रूप में पांच महाभूत तत्वों की स्थापना की गई, उनका निर्माण किया गया, जिनको कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति उसका निर्माण भी नहीं कर सकता है। और क्योंकि ना मैं निर्माण कर सकता हूं, ना मैं उसको समाप्त कर सकता हूं, इसीलिए उनको परमात्मा के बनाए हुए प्रकृति का हम लोग संज्ञा देते हैं। छोटे छोटे शब्दों से हमको समझ में आ जाएगा, जब ईश्वर किसी चीज को बनाते हैं तो हम उसको प्रकृति कहते हैं। आप और मैं किसी चीज को बनाएंगे तो उसको कृति कहा जाएगा, वो प्रकृति नहीं होगी। प्रकृति केवल ईश्वर की बनाई हुई वस्तु हो सकती है या आत्मा हो सकती है, और मनुष्य का बनाया हुआ कुछ भी हो। आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो सकता है क्लोनिंग करके आदमी भी बना दें, वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है, वो कृति है। और कृति के अंदर में क्या है, हमने प्रकृति के नियमों की स्वीकृति की है, और वही हमारे उसमें अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हम स्वीकृति करते हैं तो संस्कृति बनती है, और अगर हम उसको स्वीकृति नहीं करते हैं तो हम उसमें विकृति निर्माण करते हैं। तो आप देख लीजिए कितने सारे शब्द आए हैं जो एक दूसरे के साथ में
लगते तो ऐसा है कि जैसे पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची नहीं है। ईश्वर ने निर्माण किया तो प्रकृति, आपने और मैंने निर्माण किया तो कृति, और ये कृति क्या है? प्रकृति की स्वीकृति है। और अगर हमने स्वीकृति के हिसाब से कृति बनाई तो वो हमारी संस्कृति हो जाती है। लेकिन अगर हम उसमें विनाशकारी तत्वों का साथ में समायोजन कर देंगे तो वो विकृति हो जाएगी, और विकृति हो जाएगी तो ईश्वर की दृष्टि में दंडनीय हो जाएगी। उसका दंड किस प्रकार से मिलेगा ये आप और हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जितना भी सृष्टि के अंदर में ज्ञान है, आप और मैं इतनी यहाँ पर ज्ञान के कारण ही ये सब बातें जानने की इच्छा रख रहे हैं। पर हम जब इस विषय को ज्यादा अच्छी तरह जान जाएंगे तो जो हमारा ये ज्ञान है ये विज्ञान की संज्ञा हो जाए। लोग कहते हैं साइंस जो है ये धर्म से बिल्कुल अलग चीज है। ये बड़ी मूर्खता का एक स्टेटमेंट है, क्योंकि केवल धर्म वही होता है जो विज्ञान सम्मत होता है। और विज्ञान का मतलब वो साइंस नहीं है जो आपने और मैंने बनाई है। विज्ञान वही है जो विशेष ज्ञान परमात्मा ने अपनी ही कृपा से मनुष्य जाति को प्रदान किया है। जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों के भी 4 वर्गीकरण है। एक उसके अंदर में ऋग्वेद की संज्ञा है, एक उसके अंदर में यजुर्वेद की संज्ञा है, एक उसके अंदर में सामवेद है, एक अथर्ववेद है। अब देखिए इन चारों के अंतर में क्या अंतर है। ईश्वर का ये जो ज्ञान है इसके 4 वर्गीकरण करके खाली इसलिए सिंप्लीफाई कर दिया गया कि आपको कौन सा विषय चाहिए। अगर आपको सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान करना है तो आप ऋग्वेद में जाइए। अब आपने जीवन का जितने भी जीवात्माएं बनी है और प्रकृति के साथ में आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, ये आपको जो कर्म करने हैं उस कर्म कांड के लिए आप यजुर्वेद का सहारा लीजिए। आपको ईश्वर के विषय बहुत सी जानकारी है और आप ये चाहते हैं कि आपके मन की जो इच्छाएं वो प्रार्थना के रूप में ईश्वर तक भी जाएं, उनको निवेदन कैसे करें, तो सामवेद का सहारा लीजिए। और जब आपको किसी भी विषय के अंदर में विशेष ज्ञान की इच्छा हो तो फिर आप अथर्ववेद में जाइए। तो अथर्ववेद हमारा एक साइंस का वेद है। इसी प्रकार से यजुर्वेद कर्म कांड का वेद है, और ज्ञान का जो वेद है वो ऋग्वेद है। और उपासना अगर ईश्वर की करनी है, उपासना का मतलब उसके समीप बैठना है। उप आसन, उप का अर्थ है समीप और आसन का मतलब है बैठना। जैसे आज आप हम सब लोग बैठे हैं एक दूसरे के निकट, वास्तव में हम जिस प्रकार से डिजिटली जुड़े हैं तो हम एक दूसरे के निकट तो नहीं बैठे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक विषय के साथ जुड़े हैं। और एक विषय के साथ जुड़ के दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ के एक ही स्थान पे और एक ही विषय के साथ में चिंता करके एक दूसरे के साथ में इकट्ठे बैठे हैं। इसलिए हम एक प्रकार से उपासना कर रहे हैं। अब ये तो हमारी आपस की व्यक्तियों की उपासना है, इसको तो ज्यादा से ज्यादा सभा कहेंगे। लेकिन जब हम ईश्वर के समीप बैठना चाहते हैं तो हम उसको जेनरिक वर्ड बोलते हैं उपासना। तो बंधुओं, मैंने आपको वेदों का थोड़ा सा परिचय बताया। अब प्रश्न बस इसी बात से आती है कि ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो ये कौन सी सनातन ऐसी वो है विधि कि जिसके कारण से ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। तो उसके लिए एक मंत्र है जिससे आप सब लोग परिचित हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र का बहुत ही स्पष्ट जो मर्म है वो ये है कि परमात्मा स्वयं में पूर्ण है, और उस पूर्ण में से उन्होंने इस इदम का मतलब ये जो सृष्टि है इसको भी पूर्ण रूप में इसको निर्मित किया। तो पूर्ण मदः वो पूर्ण थे, पूर्णम इदम ये भी पूर्ण है, पूर्णात पूर्णम उदच्यते जो कुछ अब बनाया गया है उसके अंदर में सृष्टि में विभिन्न इकाइयों में 84 लाख योनियों के अंदर जितनी भी जीवात्माएं हैं असंख्य, सब पूर्ण है। उसके अतिरिक्त सृष्टि के अंदर में जितनी वनस्पति है, अन्य चीजें हैं, वो सब भी अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर चुकी हैं। तो कैसी विचित्र व्यवस्था है। पूर्ण से पूर्ण का निर्माण हुआ, और जो जिसमें से निर्माण हुआ वो फिर पूर्ण रहता है, जिसका निर्माण हुआ वो पूर्ण रहता है। और आप और मैं जब आगे संतानों को जन्म दे पाते हैं वो संतान भी फिर उसी प्रकार से एक पूर्ण इकाई के रूप में जन्म लेती है। तो कितनी विचित्र व्यवस्था है। पूर्ण में से पूर्ण का निर्माण हो रहा है और जो शेष रह रहा है वो भी पूर्ण है। तो सब कुछ जब पूर्ण होगा
तो ये जो व्यवस्था है ये केवल और केवल परमात्मा के वश की बात है। आप और मैं कुछ भी किसी चीज का निर्माण करेंगे, अगर एक पूल भी बनाए, जल का जलाशय बनाए और उसमें से एक एक लोटा भर के किसी को देने लगे, तो निश्चित रूप से वो जलाशय खाली हो जाएगा, क्योंकि वो पूर्णत्व हमको प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहली जो सनातन सत्ता है वो परमात्मा है। उसके बाद में उसी ने जो सनातन सत्ता बनाई है वो प्रकृति के रूप में पंच महाभूत तत्वों की निर्मित की है। उसी ने एक चेतन सृष्टि बनाई है, क्योंकि चेतन सृष्टि के ही भोग के लिए प्रकृति का निर्माण किया। अब चेतन सृष्टि, इसका मतलब क्या हुआ? वो सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य है, वो साध्य है, साधक है, और साधन क्या है? वो प्रकृति है। हमारा जो शरीर बनता है वो भी उन्हीं साधनों से बनता है। आपका और मेरा शरीर इन पांचों तत्वों से बना है, और इन्हीं पांचों तत्वों से सृष्टि बनी है। और इसीलिए क्या कहते हैं? यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड। जैसा ये मेरा आपका पिंड है, पांच तत्वों से बना है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये सारा ब्रह्मांड भी इन्हीं पांच तत्वों से बना है। और देखिए, एक बड़ा छोटा सा रोचक इसके लिए साम्य आपको देखने को मिलेगा। 70% इस सृष्टि के अंदर में जल की हमारे को ज्ञान है, और आपके और मेरे शरीर में 70% ही रक्त के रूप में जल भी है। तो क्या है? हम एक प्रकार से इसी ब्रह्मांड के पिंड के रूप में एक छोटे से मोबाइल रेप्लिका है। जब हम ब्रह्मांड का ही एक स्वरूप हैं, तो क्या हमारा आचार विचार और व्यवहार उसी ब्रह्मांड के अनुरूप नहीं होना चाहिए जिसको ईश्वर ने सृष्टि के रूप में रचा? जब हम उसी आचार विचार और व्यवहार की बात करते हैं, तो वो जो हमारा एक धर्म होता है वही सनातन धर्म। तो सनातन धर्म अगर बहुत ही संक्षेप में बताया जाए, इसकी व्याख्या बहुत विस्तार में होती है। और मैंने ये भी अनुभव किया है कि बहुत से हमारे विद्वानों को एक प्रकार का, एक समझिए, नैक है कि किसी भी सरल बात को बहुत क्लिष्ट शब्दों में बताना शायद विद्वत्ता का बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है। और मैं सामान्यतः यही देखता हूं कि जितने भी हमारे विद्वत श्रेणी में लोग आए हैं, वो छोटे से छोटे विषय को इतना क्लिष्ट करके, इतना उसको ट्विस्ट करके और ऐसा ऐसा लपेट के बताने की चेष्टा करते हैं कि हर व्यक्ति ये समझने लगता है कि संभवतः ये जो बात है ये केवल यही विद्वान समझ सकते हैं, मेरे जैसा साधारण बुद्धि वाला उसको समझ नहीं सकता। बंधुओं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अन्याय है, और हमारा जो विद्वत समाज है इसको इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। विद्वान का ये पहला कर्तव्य बनता है कि वो ये बताए कि सृष्टि के नियम बहुत सरल होते हैं। ये सारा का सारा सनातन धर्म वही है जो सरलतम धर्म है, और जितने भी क्लिष्ट बनाए गए हैं वो सारे के सारे हमारे पंथ हैं, जिन्होंने किसी एक छोटे छोटे अंग को लेके इतना उसको लपेटा है और इतना उसके अंदर विस्तार दिया है कि आप और मुझ जैसा जो अल्पज्ञ व्यक्ति है वो उसी के अंदर उलझ के रह जाता है, और अंततः उन्हीं की श्रेणी में रहता है, उन्हीं की शरण में रहता है, उन्हीं के चरणों में पड़ा रहता है। और इसीलिए सनातन धर्म की जो पहली परिभाषा है वो ये है कि जो जीवात्मा को सब प्रकार से मुक्त करे वह सनातन धर्म है, और जो उसको क्लिष्ट सारी मान्यताओं के अंदर बांधे वो सनातन धर्म तो नहीं हो सकता, वो किसी मनुष्य का बनाया हुआ पंथ हो सकता है, जो ये चाहता है कि मेरे शिष्यों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे और इसलिए वो मेरे पर डिपेंडेंट भी रहे, हर बात के लिए महाराज जी से पूछने के लिए आए। उसी को तो पंथ निर्माण करने का उद्देश्य माना जाता है। तो इसलिए सनातन बंधुओं, सबसे पहली परिभाषा है जो मनुष्य को मुक्त करता है, उसको ये कहता है कि बस ये छोटे छोटे नियम हैं, उसके अनुसार से तुम अपनी मानवता के अनुसार अपने जीवन का यापन करो, स्वयं भी जियो, औरों को भी जीने दो। इसको संस्कृति कहते हैं। और जब हम केवल अपने ही सुख के साधनों का संयोजन करते हैं तो वो संस्कृति नहीं, वो सभ्यता होती। सभ्यता को सिविलाइजेशन वर्ड कहा गया है, पर सिविलाइजेशन कल्चर नहीं होती है। और कल्चर के में भी जब संस्कृति हम बोलते हैं तो उस कल्चर के अंदर में फिर वो कल्चर, वो मैल कल्चर नहीं हो सकती। कल्चर शब्द जो है इसके तो बहुत सारे इसके प्रीफिक्स लग सकते हैं, लेकिन संस्कृति के साथ में कोई और दूसरा प्रीफिक्स नहीं लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं, अपनी संस्कृत भाषा के अंदर में जिन जिन शब्दों का
ईश्वर ने, क्योंकि देववाणी कहते हैं, इस देववाणी के अंदर में किसी भी शब्द के दो अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम अपने मन में विचार करते हैं। बाकी जितनी भी दुनिया की भाषाएं हैं वो ज्यादातर ड्यूअल मीनिंग रखती हैं, द्विअर्थी होती हैं, और द्विअर्थी होने के कारण में उनका ये पता ही नहीं लगता कि बोलने वाला किस विचार से बोल रहा है और समझने वाला, सुनने वाला उसको क्या समझ रहा है। और इसीलिए मैंने देखा है कि बाद में बड़े क्लैरिफिकेशन आते हैं कि मेरा ये कहने का भाव नहीं था, ऐसा ही समझने वाले को कहना पड़ता है कि लेकिन मैंने ऐसा समझा, आपने कहा तो अब मुझे समझ में आया। ये क्लैरिफिकेशन हमको संस्कृत में देने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ पर यह आश्चर्य की बात नहीं, दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो उसी देववाणी के अंदर में बाद में व्यास जी ने लिखा, क्योंकि उसके अंदर में अर्थ का अनर्थ नहीं हो सकता। आज हमारी जो स्थिति है, हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि परमात्मा ने स्वयं के सामर्थ्य से ये सारी सृष्टि का निर्माण किया, और उस सृष्टि के अंदर में जैसा मैंने बताया चेतन तत्व भी है जीवात्मा के रूप में, लेकिन निराकार है। उन्होंने क्या किया, साकार एक सृष्टि निर्माण की जिसको हम जड़ प्रकृति कहते हैं, उस सब का आकार है। अब निराकार जो मेरी जीवात्मा है, इसकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है जब तक ये निराकार रहेगी। जब तक इसको प्रकृति के पंचभूत तत्व से बनाया हुआ शरीर का संयोग नहीं प्राप्त होगा, ये प्राणी के रूप में जन्म नहीं ले सकती। प्राणी का अर्थ है जो प्राण के सहित हो, और जो प्राण के रहित हो वो तो निर्जीव है। वो तो पुनः उन पंचभूत तत्वों में उसके शरीर को दोबारा से उसी के अंदर में संयोजित कर दिया जाएगा। इसी को हम प्रलय बोलते हैं कि जिन तत्वों से बना था उन्हीं तत्वों में फिर विलीन हो गया। लोगों ने क्या किया, पुराणों में हमारे कल्पना की कि कभी प्रलय होगा। अरे बंधुओं, प्रलय तो रोज होता है। जब एक प्राणी जन्म लेता है तो उस समय सृष्टि का निर्माण होता है, और जब वो प्राणी स्वयं प्राण से रहित होके, निर्जीव होके उसी के शरीर की हम अंत्येष्टि कर देते हैं, या अन्य अन्य कारणों से कैसे भी उसको प्रकृति के पंचभूत तत्व में विलीन कर देते हैं, तो कारण में अपने अगर फिर से लय हो गया तो प्रलय हो गया। हमने इन छोटी सी प्रलय की एक संज्ञा को, प्रलय की क्रिया को, जो नित्य प्रति सृष्टि के अंदर घटित होती है, उसको ऐसी ऐसी कल्पनाओं को आधार दिया कि ये प्रलय कभी लाखों साल बाद होगा। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि सरल विषय को कितना क्लिष्ट बना दिया गया है। और ये केवल हमारे यहाँ नहीं, जो अन्य पंथ निर्माण हुए हैं, कोई तो कहता है कि कयामत आएगी। वो कयामत कब आएगी पता नहीं कब आएगी, और जब कयामत आएगी तो फिर जो उन्हीं के जो पैगंबर हैं वो खुदा से जिन जिन की सिफारिश करेंगे, उनको या तो जन्नत मिलेगी या उनको दोजख मिलेगी। जन्नत का मतलब स्वर्ग मिलेगा या उनको नरक मिलेगा। इसी प्रकार की कल्पना करने वाला दूसरा पंथ है हमारा। वो ये कहता है कि एक जो है वो दिन आएगा फाइनल उसका, उस दिन जो है ईसा मसीह जिन जिन को रिकमेंड करेंगे, जिन जिन के लिए वो करेंगे, उन सब के पाप क्षमा हो जाएंगे। बंधुओं, सनातन धर्म ये कहता है, ये ईश्वर की जो व्यवस्था है जिसको जानने के आप और मैं इच्छुक हैं, ईश्वर अपनी व्यवस्था से जीवात्माओं को शरीर देता है। वो मनुष्य का शरीर देता है या अन्य पशु पक्षी का देता है, कीट पतंगे का देता है, ये निर्णय स्वयं परमात्मा करते हैं। एक शरीर हमको देने के बाद में वो देखता क्या है, कर्म योनि में भेजता है तो मनुष्य के रूप में भेजता है, भोग योनि के रूप में भेजता है तो पशु पक्षी कीट पतंगे के रूप में भेजता है। भोग योनि इस प्रकार की है जैसे किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा कुछ समय के लिए ये कह दिया गया हो कि इसको कैद में डाल दो। कैद में डालने के बाद में क्या हुआ है, सब कुछ उसका वही है, भोजन भी मिलता है, वस्त्र का उपयोग भी करता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पे अंकुश है। किस लिए स्वतंत्रता पे अंकुश है कि वो स्वतंत्रता का अधिकारी नहीं था, इसलिए उसने का दुरुपयोग किया। इसलिए क्या किया, उसको न्यायालय ने न्याय व्यवस्था के अनुसार समाज से दूर करके उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया। बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो हाउस इम्प्रिजनमेंट दे दिया। लेकिन प्रश्न क्या है, उसकी स्वतंत्रता का हरण हुआ है, बाकी कुछ हरण नहीं हुआ। उसके स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं, वस्त्र की भी गिनते हैं, सब कुछ सारी सुविधाएं जुटाते हैं, बस केवल स्वतंत्रता उसकी हर लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो भोग योनि है, ये केवल अपने कर्म फल के अनुसार परमात्मा देते हैं, और यही मनुष्य जाति का है।
आपको और मुझे ईश्वर की कृपा के अनुसार ये जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म प्राप्त हुआ है, ये हमको कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ प्राप्त हुआ है, बुद्धि का साथ में संयोग दिया है, क्योंकि कर्म करना है तो बुद्धि की आवश्यकता होगी। बुद्धि के बिना कर्म कैसे करेंगे? तो कर्म करने के बाद हम स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, ये भी हमारा ही अपना स्वतः विवेक से निर्णय होता है। लेकिन उस कर्म का फल क्या होना है, ये तो निर्णय ईश्वर करते हैं, जिसको गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कितना स्पष्ट उन्होंने वैदिक मान्यताओं को अपने श्लोक के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए बताया। उन्होंने कहा तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है। लोग उसको ये बोलते हैं, उसमें भी अनर्थ करते हैं। आप इन लोगों बोलेंगे, ये सुना होगा कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम्हारा चूंकि केवल कर्म करने में अधिकार है, इसलिए तुम फल की इच्छा मत रखो। बंधुओं, ये अनर्थ है। फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो आप कर्म भी नहीं कर सकते। आपको प्यास लगी है तो आपको पानी का गिलास मेरी तरह उठा के इस तरह से एक घूंट पीना पड़ेगा। ये क्या हुआ? ये मेरा कर्म है। कर्म किस लिए है? कि मेरी इच्छा हुई कि मैं जल ग्रहण करूं। आप बता दीजिए, यहाँ पर जितने हम इकट्ठे हुए हैं, एक इच्छा है ना कि हम ज्ञान के बारे में कुछ सीखें, सनातन के बारे में कुछ नया जाने। इस इच्छा से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो क्या बिना इच्छा के हम कोई कर्म कर सकते हैं? तो इसलिए गीता के श्री कृष्ण के इस भाव को हम लोग अभाव में अगर परिणित कर देते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट ये कहा है कि आप कर्म करने में आपका अधिकार है, उसमें बड़ा विवेक का अपना प्रयोग कीजिए। चेष्टा कीजिए कि आपका विवेक जो है उसी के अनुसार आपका कर्म हो। और क्योंकि फल पे आपका अधिकार नहीं है, लेकिन इच्छा हमारी सबकी अच्छा फल प्राप्त करने की है, तो इतना विवेक हम में होना चाहिए कि अच्छा कर्म करेंगे तो हमको उसका पुरस्कार मिलेगा, दुष्कर्म करेंगे तो हमको उसका दंड मिलेगा। उस पर हमारा अधिकार नहीं है। और इसीलिए हमारे लिए क्या कर्तव्य है कि हमने जब अपना कर्म कर दिया, उसके बाद जो फल हमको मिले, ईश्वर की न्यायिक व्यवस्था के अनुसार उसको स्वीकार करके अपने को संतुष्ट अनुभव करें। बस ये हमारे अधिकार में। तो कृष्ण के इस वाक्य को भी इतना अनर्थ हम कर देते हैं, और यही हमने अन्य अन्य अपने बहुत महापुरुषों के साथ किया है। उन्होंने किसी भावना से हमको कोई बात बताई है, और हम उनके अनुयायियों ने अपने अपने मन की भावनाओं को उसमें जोड़ के, अपने अपने प्रेजुडिसेस को, अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी अज्ञानता को उस सब के अंदर जोड़ के अपने ही महापुरुषों के कथनों को हम लोगों ने इतना विकृत कर दिया है कि अंततः हमको उसके शोधन के लिए भी रोज नया प्रयास करना पड़ता है। पॉल्यूशन हम करते हैं और सॉल्यूशन तो फिर हमको परमात्मा से मिलता है। तो ये सब चीजें जब तक हम नहीं समझेंगे, तो एक तो हमको ये समझ में आना कि ये जो प्रकृति है, इसको विज्ञान भी ये मानता है। और विज्ञान भी क्या मानता है? सबसे पहला ये विज्ञान मानता है कि आप कोई मैटर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसका तो बड़ा सिंपल उदाहरण है, मेरे शरीर के अंदर ये जो रक्त है, आज कितनी भी मेडिकल हमारी जो वो है फ्रेटर्निटी एडवांस हो गई हो, कितना भी एडवांसमेंट हो गया, और रक्त निर्माण करने का आज तक उनके पास भी कोई ऐसा साधन नहीं बना। इसीलिए हम लोग एक दूसरे को रक्त की आवश्यकता होती है तो रक्तदान पे ही निर्भर करते हैं, ब्लड डोनेशन पे ही निर्भर करते हैं। कितनी भी एडवांस साइंस हो गई है, वो आज तक रक्त का निर्माण नहीं कर पाई। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। जल हम नहीं बना सकते, पृथ्वी का कोई भी कण हम नहीं बना सकते, वायु हम नहीं बना सकते। हम क्या कर सकते हैं? जितना कुछ ये बना है, तो प्रकृति के ये पांचों तत्व ये सनातन तत्व हैं। मैंने पहले बताया कि सनातन एक विशेषण है, आप किसी भी संज्ञा के साथ लगाते जाइए। तो सबसे पहला मैंने आपको निवेदन किया, सनातन सत्ताएं हैं। तीन सत्ताएं हैं, परमात्मा है, जीवात्मा है और प्रकृति है। इनके अंदर में तीनों सत्ताओं का जो अस्तित्व है, ये सनातन है। और सनातन होने के कारण ही हम इनको सनातन सत्ता बोलते हैं। अब प्रश्न क्या आता है, इनमें सनातन का गुण क्या है? पृथ्वी के अंदर में ये गुण है कि वो अपने आप को रिप्लेनिश करती है। आप उसमें से कोई भी एक फसल उगाइए, और फसल उगाने के बाद में 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। 6 महीने बाद वो सृष्टि, वो पृथ्वी का टुकड़ा अपने आप को फिर से फर्टिलाइज कर लेगा। दूसरा, हमारे पास आर्टिफिशियल तरीका क्या है? हमको तो 6 महीने प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमको तो तुरंत दूसरी फल लगानी है उसके अंदर में फसल।
तो हम उसमें आर्टिफिशियल मैन्योरिंग करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे और उसको किसी भी प्रकार से एक्टिवेट करके अब हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उसका शोषण कर रहे हैं। और शोषण करके क्या कर रहे हैं हम, उसके अंदर जो अभी उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसी पृथ्वी के टुकड़े में दूसरी फसल तुरंत 1 महीने के बाद ही डाल देंगे। लेकिन उसके अंदर में तो एक सनातन उसका गुण है कि वो अपने आप को रिप्लेनिश करती है। आप वायु का अगर देख लीजिए, वायु कहीं भी थोड़ी से पोल्यूटेड है, आप उस वायु को बहने दीजिए, थोड़ी देर में वो वायु शुद्ध हो जाएगी। जल पोल्यूटेड है, इसीलिए नदी के जल को शुद्ध मानते हैं, और जो तालाब का जल है उसको शुद्ध नहीं मानते, क्योंकि वो एक जगह रुका हुआ है। लेकिन अगर वो गतिमान है तो वो आप नदी का जल जो अभी आपको गंदा नजर आ रहा हो, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में स्वच्छ जल की धारा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो प्रकृति का ये नियम है कि प्रकृति के पांचों तत्व स्वयं को रिप्लेनिश करने की क्षमता रखते हैं। ये उनका सनातन धर्म है। अब ये विषय आता है कि सनातन धर्म, अब सनातन धर्म से पहले हमको 2-3 बातें और समझनी होंगी, क्योंकि जब धर्म का विषय आएगा तो वो आज का जो हमारा रिलेवेंट विषय है वो केवल उसी की व्याख्या करेगा। लेकिन उससे पहले जो ओवरऑल व्यू देना है कि फिलोसफी क्या है सनातन की, वो मैं आपके सामने कुछ और थोड़े से उदाहरणों से स्पष्ट करने की इच्छा रखता हूँ। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो साइंस है, उस साइंस के कई स्वरूप हम जानते हैं। जितने लोग इसमें बैठे हैं आज मेरे इस व्याख्यान में, बहुत से लोग हो सकता है साइंटिस्ट हों, कोई फिजिक्स का होगा, कोई केमिस्ट्री का होगा, कोई बायोलॉजी का होगा, कोई एस्ट्रोनॉमी का होगा, कोई और अन्य अन्य किसी न किसी विधा का होगा। जरा सा ये समझिए फिजिक्स क्या है। ये सृष्टि के जितने जो 5 तत्व हैं, इन्हीं के गुणों का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। उन्हीं से हम अपने अधिकतम उपयोग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे फिजिक्स का आर्टिकुलेशन। तो रोज हम फिजिक्स के अंदर में रोज एक नई खोज करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है, खोज को हम डिस्कवरी कहते हैं। उसको हम डिस्कवरी क्यों कहते हैं कि एक चीज कवर्ड थी, हमने केवल उसको डिस्कवर किया है। आपके किसी बर्तन के ऊपर में एक ढक्कन हो और उस ढक्कन को आप हटाएं तो क्या कहेंगे, डिस्कवर। इसका अर्थ यह है कि जो सनातन सत्ता मौजूद थी, वायु के कितनी क्षमता है, जल की कितनी क्षमता है। जल की क्षमता को हम हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वायु की क्षमता को उसको हम एरोनॉटिक्स में ले जाते हैं, अन्य अन्य जितनी है उसको हम जियोलॉजी कहने लगते हैं। तो हम जितनी ये लॉजी बोल रहे हैं, ये लॉजी क्या हमने निर्माण की है? हम लोगों ने केवल उसको खोजा है जो आज तक हमारी आंखों से ओझल था, और हमने अपने ज्ञान के और विशेष ज्ञान के, जिसको विज्ञान कहते हैं, उस विशेष ज्ञान के माध्यम से सृष्टि के उन तत्वों को खोज लिया है। और उससे खोज के आज क्या हो रहा है, मैं इतनी दूर भारत में बैठा हूं, आप अमेरिका में बैठे हैं, और वायरलेस जो वायु के अंदर में जो तरंगे हैं, उन तरंगों के माध्यम से हम एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। क्या ये वायु की तरंगे हमने निर्माण की हैं? हमने केवल विशेष ज्ञान के माध्यम से उन वायु की तरंगों को खोजा है। तो खोजना निर्माण नहीं होता, और निर्माण करता है वो सनातन परमात्मा है, और जो उसने बनाया है उस समय निर्मित किया वो सनातन सत्ताएं हैं। और आज हम जितना खोज पा रहे हैं, ये हमारे मनुष्य के ज्ञान के माध्यम से हमारी केवल कुछ खोज हैं, जिसको हम आविष्कार की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहला तो मानव जाति का ये भ्रम टूटना चाहिए कि मनुष्य जाति बहुत ही डिपेंडेंट है परमात्मा की कृपा पे क्षण क्षण में। बंधुओं, आप जिस समय एक अपनी फ्लाइट के अंदर बोर्ड करते हैं, आपने देखा है कि क्या करते हैं, पहले उसकी हम टैक्सिंग करते हैं। प्लेन जो है उसके अंदर में हम बैठे हैं, वो टैक्सिंग करता है अपने उसके ऊपर में रनवे पे। और रनवे पे क्या करता है, धीरे धीरे उस रनवे पे वो स्पीड को जो करता है, और उसके जो दोनों साइड में विंग्स हैं, उनके अंदर में थोड़ी सी हलचल होती है। वो हलचल होके क्या होता है, वो धीरे धीरे वो उठना शुरू हो जाता है। उठने के बाद में इतना जो वायुयान का भार है, उसको कौन सहार रहा है? केवल उसका नीचे का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सहार रहा है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या हमने बनाया है? ये है सनातन निर्माण, ये है सनातन सत्ता जो ईश्वर ने बनाई हुई है। हमने केवल उसके गुणों को खोज के अपने लिए उसके अंदर में अधिकतम उपयोग के साधन बनाए।
जिस दिन मनुष्य ये जान जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा। आज तो स्थिति ये हो रही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने का दावा कर रहे हैं। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी आपको लगता है नेचुरल इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर पाएगी? ज्यादा से ज्यादा वो उसको डिस्क्रेडिट तो करेगी, लेकिन उसका उपयोग कितना होगा वो तो मुझे लगता नहीं है कितना भी होगा, लेकिन उससे दुरुपयोग कितना ज्यादा होगा, जो आज हमको पता है साइबर फ्रॉड की वजह से हो रहा है। रात दिन हर आदमी जिसके मोबाइल में इतनी ताकत है कि वो अपने बैंकिंग ऑपरेशन उन मोबाइल के एक क्लिक से करता है, और ये सारा मार्केटिंग का फंडा भी जितनी भी कंपनियों का वो यही है। लेकिन वही जब साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं तो उसी उनके मोबाइल के वो सारी के सारी सुविधाओं का दुरुपयोग कितना भयंकर होता है, ये भी हम रोज देखने को मिलता है। हम लोग ये कहते हैं कि हमने रोबोट्स निर्माण किए हैं। ये रोबोट निर्माण करना हमारी सभ्यता का पार्ट तो हो सकता है, पर संस्कृति का पार्ट नहीं है। क्योंकि संस्कृति का मतलब तो यह है कि हम मानव सत्ता का सम्मान करें। आज हम तो मानव सत्ता को रिप्लेस करते जा रहे हैं। रोबोट बना के सारे रेस्टोरेंट के अंदर रोबोट ही आपको सर्व करेगा, वही वेट करेगा। ड्राइवरलेस आप गाड़ी चलाएंगे, ड्राइवरलेस आपका प्लेन उड़ेगा। जब ये सब स्थिति होगी तो क्या है? ये एक प्रकार से मानव सत्ता का अपमान नहीं तो और क्या है। हम अपने सुख साधनों में कमी नहीं चाहते, लेकिन मानवता का हमारे मन में किसी तरह का कोई सम्मान नहीं है। ये सनातन धर्मों की अवहेलना है। मैंने आपसे ये बताया कि फिजिक्स के अंदर में आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, जितने भी एग्रीकल्चर के ये सब हैं, उसमें कभी किसी ने सोचा कि ये सारी प्रकृति के अंदर में इतनी वनस्पति का निर्माण कैसे होता है? जितने जंगलों के अंदर में पेड़ होते हैं, क्या आपने और मैंने लगाए हैं? ये जितने भी पशु पक्षी हैं जिसको हम फ्लोरा और फौना के नाम लेते हैं, तो फ्लोरा तो सारी वनस्पति हो गई, और फौना क्या है? जितने भी ये सारे कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं। क्या सबको नहीं मालूम है कि जितना परागण है, जितना अंकुरण है, वो इन पशु पक्षियों के माध्यम से होता है? भौरा किस प्रकार से एक एक जगह से पराग लेके दूसरे पुष्प में आरोपित करता है, उसका इम्प्रेग्नेट करता है। ये भौरा करता है, आप और मैं नहीं करते हैं। कई दफे लोग ये कहते हैं कि सारी सृष्टि जो है उसके अंदर में जितने भी पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, उनमें बहुत से ऐसे हैं जो निरर्थक हैं। ये इतनी बड़ी अज्ञानता है। आप एक प्रकार की कल्पना कीजिए, केवल मनुष्य रह जाएं सृष्टि में और प्राणी जगत में पशु पक्षी सारे समाप्त हो जाएं, निश्चित मानिए कि एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी मानवता की भी जीवित नहीं रह पाई। ये क्या है? ये सनातन धर्म है, सनातन व्यवस्था है। जिन सनातन व्यवस्थाओं से हमारा शरीर टिका हो, उन सनातन व्यवस्थाओं के बारे में कुछ मूर्ख लोग इस प्रकार की अनर्गल बात करते हैं, तो ये उसी प्रकार की बात है जो बोलते हैं कि महाकवि कालिदास कवि एक ऐसे व्यक्ति थे जो महामूर्ख की श्रेणी में आते थे, और किसी ने उनको देखा कि जिस पेड़ की डाल पे वो बैठा है उसी को काट रहा है। आज हमारे सनातन को अपशब्द बोलने वाले लोग उसी कालिदास की श्रेणी में आते हैं। जिस डाल पर बैठे हैं उसी को गाली देना, ये आपके अधिकार में तो है। आपको स्वतंत्रता मिली है, उसका दुरुपयोग भी है। लेकिन चूंकि ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है, और ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत ही किस दिन आपको वापस बुला लेंगे ईश्वर, ये भी आपको मालूम नहीं है। उसके बाद में पुनर्जन्म देंगे तो किस रूप में देंगे, इसकी कल्पना केवल आपको करनी है। तो मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन मेरा ये कहने का विषय है कि जितनी भी शिल्प कला है, जितने हमारे ट्रेवल के मोड है, जितना हमारा ये शरीर का विज्ञान है, जितनी हमारा ये वेपन का ये सारी की सारी शस्त्र कला है, जितने हमारे वस्त्राभूषण हैं, आखिर ये सब किन से बनते हैं? ये फिजिक्स के अनुसार उन्हीं पंच तत्वों से बनते हैं। हम उन्हीं के गुणों का, उनका मेटल, उनका हम किसी भी प्रकार से केमिकल टेस्ट कराते हैं, उनकी मेटलर्जी टेस्ट कराते हैं, तो कौन से गुणों को अनुभव करते हैं? उन गुणों को जो प्रकृति ने पहले से बनाए हुए हैं। हम केवल उन गुणों को एनालाइज करके अपने लिए उपयोग की वस्तु बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने एक तो निवेदन ये किया कि जितना भी ये वो होता है परागण, परागण का मतलब है एक पुष्प से लेके पराग दूसरे पराग में पुष्प में जाना। अंकुरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे बीज जाना। ये सब हमारे इन्हीं छोटे छोटे प्राणियों के माध्यम से होता है, जिनको हम आवश्यक नहीं समझते। केमिस्ट्री की बात आती है, ये क्या है? एक प्रकार का रसायन है।
रसायन शास्त्र बोलते हैं इसको। तो रस किसने निर्माण किया? रस के लिए वेदों में संज्ञा दी गई है सोम। चंद्रमा जो है ये सोम का निर्माण करता है, और सूर्य एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और इसलिए सूर्य को सृष्टि की आत्मा कहा गया है। ओम सूर्य जगतस्तु, ओम सूर्य आत्मा जगतस्तु सत्य। सारे सृष्टि की, प्राणी जगत की भी और जड़ जगत की भी, उस सारे की अगर कहीं से भी कोई आत्मा है, जड़ जगत में आत्मा नहीं होती है, मैं एक काल्पनिक स्वरूप आपको बता रहा हूं। आत्मा का मतलब है जो उसका रिप्लेनिशमेंट का जो एक लक्षण है, उसको अगर कोई भी किसी भी प्रकार से एक्टिवेट रखता है तो वो केवल सूर्य के माध्यम से होता है। और जितना भी ये सोम के माध्यम से चंद्रमा की शीतलता सारी वनस्पति के अंदर रसों का आधान करती है। तो ये सारा का सारा रस जो निर्माण किया, उस रस का जो शास्त्र है वो रसायन शास्त्र है। और मैं यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं उनसे बड़ी एक विनोद की बात कहना चाहता हूँ। आज हमारे घरों में जो भोजन बनता है तो हमने उसको अपने सभ्यता की भाषा में किचन कहना शुरू कर दिया। बंधुओं, ये किचन नहीं है, ये रसोई है, रसायनशाला है। कोई ऐसा रस नहीं है जिसको हम 56 रसों की बात करते हैं या 9 रसों की बात करते हैं जो आपकी रसोई में नहीं है। उस रसों का किस प्रकार से हमने उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन बनाना है, ये कौशल आपके पास, हर महिला के पास है। इसको हम पाकशाला बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको किचन कह दिया, जिसमें किच किच हो सकती है, उसमें कुछ और बात नहीं हो सकती। तो क्या हम लोगों ने अपने ही शब्दों का, अपने ही संस्कृति का ऐसा अनर्थ कर रहे हैं कि क्या है, हम सनातन अपनी जो नियमों हैं उसके अवहेलना करके उन कष्टों के भागी बन रहे हैं कि जिसके कारण हम अपनी आयु का भी आज पूरा भोग पाने के अंदर में असमर्थ अपने आप को पा रहे हैं। आप अमेरिका जैसे विकसित देश में रह रहे हैं, जिसको ये कहा जाता है कि सारी दुनिया की सुविधाएं, सारी दुनिया की जितनी संपन्नता है वो अमेरिका के लोगों में है। क्या अमेरिका के लोगों में सब प्रकार की बीमारियां नहीं है? आपने कोरोना काल में देखा है, सबसे ज्यादा अगर इम्यूनिटी का लेवल लो था तो किन लोगों में था? ये वही लोगों में था जो समाज के सबसे ज्यादा संभ्रांत लोग माने जाते हैं। और सबसे ज्यादा जिनको हम ये मानते हैं निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ। जितना भी लेबर क्लास थी वो बहुत ज्यादा इम्यून रही, और बीमार हुए हैं तो आप और मेरे जैसे हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने अपने ही ईश्वर के बनाए हुए, जो मानव के लिए नियम बनाए हुए थे, सनातन नियम थे, उन सनातन नियमों का पालन नहीं किया। जबकि हमारे यहाँ वेदों में आदेश दिया गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी वेशत शतम समा। क्या कहा है वेद ने? कि आप कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखिए। खाली क्या इच्छा रखने से, विजुअल थिंकिंग से कोई सफलता मिलती है क्या? कितना मर्म क्या है इस एक छोटे से वाक्य में कि कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखना, बिस्तर में पड़े हुए जीने की इच्छा नहीं रखनी। कर्म करते हुए जीवन के अंतिम काल तक, लेकिन इच्छा रखना आपका अधिकार है। और उस अधिकार का प्रयोग का किस प्रकार से निर्णय होगा, ये ईश्वर का अधिकार है। लेकिन ईश्वर ने क्या अधिकार दिया हुआ कि मेरे बनाए हुए जितने भी नियम है उनका तुम पालन करो, तो मैं गारंटी देता हूं कि 100 वर्ष तक तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहेगा। आज हमारे इसके अंदर में जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत से लोग होंगे जो 80 वर्ष से अधिक होंगे। कुछ लोग होंगे जो मेरी आयु के होंगे, मेरी भी आयु 80 वर्ष की है। अब भी और भी लोग होंगे। स्वाभाविक है, ये जो ईश्वर ने आयु हमको दी है, आज भी ये स्वस्थ रखा है, निश्चित रूप से हमने मानव के लिए बनाए हुए जो स्वास्थ्य के नियम होंगे उनका पालन कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ किया होगा। रमेश देशपांडे जी मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बड़े आयु के हैं, और आज भी इतने अपने आप में सक्रिय रख पा रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाण है कि हमने सनातन नियमों का पालन किया होगा अपने जीवन में, तभी हम इस आयु तक अपने को स्वस्थ पा रहे हैं, और स्वस्थ पाके हम अपने आप को क्रियाशील, एक्टिव भी रख पा रहे हैं। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है, हमारा जो स्वास्थ्य है, ये केवल और केवल सनातन नियमों का एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है। बायोलॉजी की बात करते हैं, ये सारी की सारी बायोलॉजी, इसके अंदर में मैं सनातन में जो विशेष बात कहना चाहता हूं, इस प्राणी जगत के अंदर में 4 प्रकार से जन्म के प्रकार ईश्वर ने बनाए। या तो जो ये प्राणी जगत है इसके अंदर में लोग जरायुज होते हैं, जैसे हम मनुष्य हैं।
माँ के गर्भ में भी जब बच्चा होता है तो उसके ऊपर में चारों तरफ एक आवरण होता है, सैक होता है जिसको बोलते हैं, वो उसकी जरा बोलती है। और जब इसलिए जब वो भ्रूण नाल के मध्य से बच्चा जन्म लेके बाहर आता है तो उस भ्रूण नाल को काट दिया जाता है और उसके ऊपर में चारों तरफ, आपने देखा है बच्चों को तभी स्नान कराना पड़ता है, वो उस जरा से आवृत होता है, जरायुज होता है। तो जो माँ के गर्भ में इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं उनको जरायुज कहते हैं। इसके अलावा अंडज सारे प्राणी जगत है, जितने भी हमारे ये अंडे से जन्म लेते हैं, उसके अतिरिक्त बहुत से हैं स्वेदज हैं। स्वेदज का मतलब, स्वेद का अर्थ है पसीना। सिर में जूं पैदा होती है, कहां से पैदा होती है? कोई उसके अंदर में माता पिता का संयोग नहीं है। और क्या है, केवल स्वेद से पैदा होते हैं, नाली के अंदर कीड़ा पैदा होता है। तो स्वेदज प्रकार है, अंडज प्रकार है, जरायुज प्रकार है। और जो हमारा ये जिसको बोलते हैं कि ये जो जितने भी ये वनस्पति है, ये सारा का सारा उद्भिज कहलाती है, जो सृष्टि के पृथ्वी की व्यवस्था से अंकुरण होके उद्भिज होके बाहर निकलती है। तो चारों जो जन्म के प्रकार हैं वो आज तक ऐसे ही हैं जैसे सृष्टि के आदि काल में। आज भी जो अंडे से पैदा होता है वो अंडे से ही होता है, आज भी जो जरा से पैदा होता है वो जरायुज ही होता है, जो स्वेद से पैदा होता है वो स्वेद से ही होता है। उसके अंदर में दोनों शक्तियों का, मातृशक्ति और पितृशक्ति के संयोग की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, ये सनातन नियम है जो सृष्टि के आदि काल में था। आज तक भी कोई व्यक्ति अपना कितना भी एडवांसमेंट हो गया हो, इसमें परिवर्तन नहीं कर पाया। ट्रांसप्लांटेशन तो कर सकते हैं, पर ट्रांसप्लांटेशन से करने से हमको कई दफे नए परिणाम तो मिलते हैं, लेकिन हम जो हमारे जो मूल हमारे नियम है उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो सनातन जो नियम है वो किसी भी प्रकार से हमको पालना है तो उसी को, जो पालने के जो नियम है उसी को हमारे यहाँ पे आयुर्विज्ञान कहा है। और वेदों का अगर एक उपांग है वो आयुर्वेद केवल इसीलिए ही है कि आप, वेद का अर्थ है ज्ञान और आयु का अर्थ है आयु के विषय में बताया हुआ ज्ञान, कि आपको अपनी आयु बिल्कुल निष्कंटक प्राप्त करनी है तो मैं आपको ये ज्ञान देता हूं। इसी के लिए उसका नाम वेद है कि इनके आधार पे आपने जो मैंने कहा कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जी जी वे शतम समा, ये इसके अंदर में सफल हो सकता है। तो बंधुओं, जितना हम वेदों के निकट रहेंगे, जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से सनातन व्यवस्थाओं की पालना करते हुए हम अपने ही इस सनातन शरीर को, क्योंकि ये शरीर भी मेरा केवल रूप परिवर्तन करता है, विनष्ट ये भी नहीं होता। 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में विलीन हो गया, पुनः उन 5 तत्वों का संयोजन हो गया, फिर एक प्राणी का जन्म हो गया। तो पुनर्जन्म का अर्थ क्या हुआ? वही मूल तत्व जो मुझको पहले प्राप्त हुए थे शरीर के रूप में। आत्मा तो मेरी वही है, हाजिर भी है, अमर भी है, वो तो सनातन है। साथ में जो मेरे शरीर के बनाने वाले मूल तत्व है वो भी सनातन है। तो इसका स्पष्ट ये समझ आता है कि हम जितने भी ये मनुष्य हैं, प्राणी हैं, देखने को क्षण भंगुर लगते हैं, लेकिन अगर इसका जेनेरिक एनालिसिस करें तो ये सारा का सारा प्रकृति और प्राणी जगत का अंग होने के कारण निरंतर एक सनातन प्रक्रिया है। इसके बाद में एस्ट्रो साइंसेस का बात थोड़ा सा परिचय दूंगा। हम आपको आकाश के अंदर में अंतरिक्ष की बात करते हैं। जितना हम अपने सामने देख पाते हैं वो आकाश है, जितना हम नहीं देख पाते हैं उसको हम स्पेस की संज्ञा देते हैं, और स्पेस को हम अंतरिक्ष बोलते हैं। तो जो बहुत दूरस्थ ग्रह हैं वो हमको आंखों से नहीं दिखते, लेकिन हमारे स्पेस साइंटिस्ट उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जितना भी हमारा अंतरिक्ष विज्ञान है, जितना भी आकाश के अंदर में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र हैं, हम इनकी गणना किस प्रकार से कर पाते हैं? क्योंकि उनकी एक सनातन गति है। सूर्य की अपनी एक निश्चित गति है, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन जितने भी अन्य ग्रह हैं जिनको हम शुक्र बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं, मंगल बोलते हैं, शनि बोलते हैं, ये सब क्या है? इनके बारे में हमारी जो एस्ट्रो साइंस है, जिसको हमने खगोल विज्ञान कहा है, ये भी सारा ज्योतिष के अंतर्गत आता है। उसके अंदर में इन सब की एक निश्चित गति है। कब उसको वक्र गति होना है ये भी हमको मालूम है, कब उसको सीधी गति चलना है ये भी हमको मालूम है। और वो इतना निश्चित और इतना स्थिर है कि आप 100 वर्ष बाद भी चंद्र ग्रहण कब होगा इसकी गणना आज कर पाते हैं।
सूर्य ग्रहण कब होगा ये गणना आप आज कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी स्थिति, उनकी जो गति है और उनकी स्थिति है वो इतनी पूर्व निश्चित है, इसलिए उसको प्रेडिक्टेबल बोलते हैं। आप और मैं, मनुष्य जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है सबसे ज्यादा। पशु पक्षी भी प्रेडिक्टेबल हैं क्योंकि वो अपनी भोग योनि में है, तो अपने धर्म से बंधे हुए हैं। अगर धर्म से कोई बंधा हुआ नहीं है तो केवल मनुष्य है, और इसीलिए सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कौन है? मनुष्य। बाकी पशु पक्षी का मालूम है ये शेर कब आक्रमण करेगा, जब इसको कोई छेड़ेगा, वरना ये किसी को नहीं छेड़ेगा, और छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, ये शेर का धर्म है। इसी प्रकार से बिल्ली का धर्म जानते हैं हम, कुत्ते का धर्म जानते हैं, लेकिन आप और मैं मनुष्य का धर्म नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि अनप्रिडिक्टेबल हम है, और यही कारण है सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन के इच्छा भी हमारी रहती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है मेरे भविष्य में क्या होना है, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है मेरा आगे क्या होगा। भविष्य को जानने की इच्छा मनुष्य में क्यों है? क्योंकि हम स्वयं अनप्रिडिक्टेबल। कोई पशु पक्षी इस प्रकार की इच्छा नहीं रखता है। तो मेरा ये आज का विषय जो मैंने आपको बताया, सनातन हम किनको कहेंगे? जिसकी व्यवस्था बिल्कुल एक सुनिश्चित है और उसका वो पालन करते आ रहे हैं। तो सारा का सारा अंतरिक्ष, आज हमारे चंद्रयान जा रहे हैं और अमेरिका ने भी इतना कुछ उसमें भेजा है। ये सब जो भेजा है तो ये किसी क्या निश्चित गतियों के आधार पे नहीं भेजा। इनको नहीं मालूम है नीचे से हम कैसे उनको ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ से वायरलेस मोड। ये क्या हुआ? जितनी भी वायु की तरंगे, उनके कुछ स्पष्ट लक्षण हैं, और उन लक्षणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हम उसके अंदर में विसंगति तो निर्माण करते हैं, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, लेकिन हम उसके अंदर में किसी भी प्रकार से उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करना एक डिफरेंट बात है। और जो हम ये जो पोल्यूशन वर्ड बोलते हैं, मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, हम किसी भी चीज को पोल्यूट नहीं करते हैं, हम इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं। क्योंकि वही पानी, मान लीजिए मैं आपके लिए पीने का पानी ला रहा हूं, तो वो बड़ा शुद्ध होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए, हमारे आरओ का होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो मेरे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन अगर पानी पीने का ला रहे हैं और लाते लाते हमारे सेवक ने या बच्चे ने उस पानी के गिलास में अपनी उंगली डाल दी, तो आप और मैं जो बड़े विज्ञानी हैं वो कहेंगे ये पानी पीने लायक नहीं है, अब ये ड्रिंकेबल नहीं। तो क्या हम समझें उस पानी का उपयोग समाप्त हो गया? उस पानी का अल्टरनेट यूज अभी भी है। पीने के पानी में आपने उपयोग नहीं किया तो आप उसको किसी भी चीज में और में उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर अगर धूल मिट्टी भी मिल गई तो आप उसका फिर कुछ और उपयोग कर सकते हैं। अंततः ये तक स्थिति है कि अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपनी ड्रेन अगर क्लॉग हो गई है, उसको भी साफ करने के लिए गंदे से गंदा पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। एक बात उभर के आई कि पानी का हमने किसी पानी की हानि नहीं की है, हमने पानी के उपयोग को बदला है। किस चीज के लिए वो कंसिस्टेंट था, हमने उसको इनकंसिस्टेंट बना के अल्टरनेट यूज के लिए उसको किसी भी प्रकार से, एक प्रकार से हमने उसके साथ में अत्याचार किया। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम सनातन सत्ताओं को बदल नहीं सकते, उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तब हमको समझ में आएगा कि हमारे सामर्थ्य में है कितना। इसके अंदर मैं कुछ आगे विषय में आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी ये शरीर की रचना है, बंधुओं, हजारों साल हो गए हमारे सारे के सारी जो मेडिकल एडवांसमेंट को होते हुए। क्या रोज हम एक नया नित्य परीक्षण नहीं करते हैं? रोज एक कंपनी नई दवाई लेके नहीं आती है? इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी स्टडी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। वो इतनी इनकम्प्लीट होती है कि रोज उसके अंदर कुछ नया जानने की गुंजाइश अभी शेष रहती है। तो जो मैंने सबसे पहले बताया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हमारे तो किसी भी आविष्कार में ये पूर्णता हमको दृष्टिगोचर नहीं होती। हमारी हर चीज अपूर्ण है, हमारा ज्ञान अपूर्ण है, और इसीलिए जीवात्मा को अल्पज्ञ कहा और परमात्मा को सर्वज्ञ कहा, केवल इसी कारण से कि वो सब कुछ जानता है। और हमारी बुद्धि का कितना भी विकास हो जाए, जिसको कभी महेश योगी ने कहा ट्रांसेंडेंटल डीप मेडिटेशन करके भी हम अपनी बुद्धि का विकास तो कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि का हम विकास कभी इतना नहीं कर सकते कि संपूर्ण ज्ञान हमारे मस्तिष्क के अंदर समा जाए। हम अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं को असीमित नहीं कर सकते। तो जिस चीज की सीमा होती है,
वो सीमित होता है, वो मनुष्य का बनाया हुआ होता है या मनुष्य से संबंधित होता है। तो सबसे पहली ब्रॉड जो एक क्लासिफिकेशन है, वो तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जितना भी कुछ है, अगर वो ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर का प्रदत्त है, तो उसको आप निश्चिंत होकर सनातन की श्रेणी में डाल सकते हैं। और जितना भी कुछ बाद में हमने अपने बुद्धि के अनुसार बनाने का प्रयास किया, वो तत्व हो सकता है, वो कोई मान्यता हो सकती है, वो कोई नया ज्ञान हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो केवल और केवल सनातन नहीं है, वो नूतन है और किसी भी दिन वो पुरातन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपको दो तीन चीजें इसके बारे में थोड़ी सी और बताने की चेष्टा करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात धर्म की आती है, तो धर्म कोई वो वस्तु नहीं है जिसको हम लोगों ने आज अब धर्म माना होगा। धर्म हर वो मान्यता है जो ईश्वर ने हमको बना के दी है। तो जिसको हमने मनुष्य का जन्म लेते ही ईश्वरीय आदेश के रूप में इनहेरिट किया है, जिसको हम अपनी इनहेरिटेंस कहेंगे, बस केवल वो सनातन धर्म है। गुड। और जिसको बाद में हमने अपनी बुद्धि के विकास से, जब हमारा ही बच्चा जवान होके बड़ा होके अपने मन की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को संचालित करने लगता है, तो वो उसकी स्वयं की इच्छाएं होती हैं, वो फिर मेरे परिवार की परंपरा नहीं होती है। जन्म लेते ही हम अपने बच्चे को, जब तक वो अबोध है, तो क्या क्या बताना शुरू करते हैं कि देखो मेरे परिवार में ये होता है, आपको ये करना है। वो उन परंपराओं को धर्म के रूप में पालन करने लगता है। उसके बाद में क्या होता है, हम उसको ये बताते हैं कि देखो मनुष्यों का ये धर्म है, स्कूल जा रहे हो बेटा, कभी किसी का नुकसान नहीं करना, कुछ चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब जो मानव धर्म है वो हम उनको रोज बताते हैं। और वो जब तक उनका पालन करता रहता है वो सनातन धर्मी होता है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होने लगता है, वो स्वयं ये सोचने लगता है, अरे मम्मी तो ये कह रही थी, पापा ये कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने ऐसा करके देखा, उसका तो बहुत अच्छा परिणाम निकला। तो उसको जो वो परिणाम निकलता है वो उसको सोचने के लिए बाध्य करता है। और जब सोचने के लिए बाध्य करता है तो वो लाभकारी होने के नाते उसी को अपनी मान्यता मानने लगता है। उसी के कारण इतने अपराधी निर्माण होते हैं, उसी के कारण इतने चोर बनते हैं, इसी के कारण इतने दुष्ट बनते हैं लोग। और वो सब क्या होता है, वो उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, वो सनातन धर्म का पालन नहीं है। वो उसके अपने बनाए हुए धर्मों का, क्या उसको धर्म का नाम तो देता है, पर उसने अपनी मान्यताओं का, अपने मत का पालन करना आरंभ किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिसको कहते हैं हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म है जिसको हम हिंदुत्व के रूप में पालन कर रहे हैं। जो कह रहे हैं मैं ईसाई धर्म है, ये ईसाई धर्म नहीं है, ये ईसा मसीह का मत है, जिसको वो उनके अनुयायी अपने लिए एक प्रकार से बिल्कुल ये मान के कि हाँ यही बिल्कुल अंतिम सत्य है, वो उसका पालन कर रहे हैं। वो ईसा का मत है, वो धर्म नहीं है। मोहम्मद साहब का मत हो सकता है, वो उनका, ये मनुष्यों का धर्म नहीं है। मनुष्यों का धर्म तो वो है जो ईश्वर ने उनके लिए बनाया है। और उस जिन्होंने मोहम्मद साहब को भी बनाया होगा, जिन्होंने ईसा मसीह को भी जन्म दिया होगा, वो परमात्मा, उन्होंने जो नियम बनाए होंगे वो तो धर्म है। बाकी जितने भी हैं वो मत और मतांतर हैं। सबसे पहला तो हम लोग अपने उच्चारण को, अपने बोलने की वोकैबुलरी को ठीक करें। हम लोग हर चीज को धर्म बोलते हैं। कितने धर्म हैं, धर्मों की क्या बोलते हैं, सर्व धर्म सम्मेलन। मैं समझता हूं इससे बड़ी अज्ञानता नहीं हो सकती। ये सर्व पंथ सम्मेलन होता है, सर्व धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो सारी मनुष्य जाति का, सारी सृष्टि के अंदर में एक है। वो आदमी अमेरिका में रहता हो, वो भारत में रहता हो, जापान में रहता हो, न्यूजीलैंड में रहता हो, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, धर्म तो उसका वही है जो मनुष्य का धर्म। बाकी उसने अपने अपने किन मतों को पालन किया है, तो वो उसका मत पालना का तरीका हो सकता है, उसका वे ऑफ लाइफ हो सकता है। तो पहली बात तो वो धर्म नहीं है। तो जिसलिए सनातन धर्म है उसके तो 10 लक्षण हमारे यहाँ निर्धारित हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति में बनाया। उन्होंने बता दिया सीधा सीधा। इन 10 लक्षणों की व्याख्या मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि इन 10 लक्षणों में सारी की सारी मानवता के कल्याण को निहित करने की हमारी सनातन परंपरा है। और जिस जिस सृष्टि के भाग में
इन 10 लक्षणों का पालन होता है, वहां पर शांति होती है। और जहां जहां पर इनमें से किसी एक की भी अवहेलना होती है, वहां पर उसी प्रकार से अशांति होती है, जिसका मैंने आपको पहले चर्चा की। आज रूस और यूक्रेन अखाड़ा बना हुआ है और सारा का सारा गल्फ अखाड़ा बना हुआ है, केवल किस लिए कि इनके धर्म के 10 लक्षणों में किसी ना किसी एक लक्षण की अवहेलना हो रही। अब मैं आपको इसके अंदर में आज सार संक्षेप में 2 बात बताना चाहता हूं। धर्म में और जितने मनुष्यों के बनाए हुए मत पंथ हैं, इनमें अंतर क्या है। मैं केवल ये बताऊंगा कि धर्म हमको क्या सिखाता है। धर्म देखिए, हमको प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाता है। हम हर एक के अंदर अपने जैसी जब आत्मा देखने लगते हैं तो वो धर्म होता है। और जब मैं ये देखने लगता हूं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, तो वो धर्म नहीं है, वो मेरा मत हो सकता है। और इसलिए क्या होता है कि धर्म वही है जो दूसरे के लिए प्राण देना सिखाए। और ये जो दूसरे के प्राण लेना सिखाते हैं कि काफिर है तो इसको मार दो, इनफाइडल है तो इसको समाप्त कर दो, ये फिर धर्म की संज्ञा में नहीं आता, ये मत हो सकता। धर्म क्या करता है? धर्म हमको भाग्यवादी नहीं बनाता, पुरुषार्थी बनाता है। क्योंकि धर्म की परिभाषा यह है कि ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो प्रार्थना की परिभाषा है वेदों में, अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के अनंतर उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए ईश्वर से सहायता की याचना करना प्रार्थना कहलाती है। तो जब तक मैं पुरुषार्थी नहीं होऊंगा, ईश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे कि इसको मैंने शरीर दिया, इस शरीर का उपयोग तो कर रहा नहीं, केवल मेरे से मांग रहा है। फिर हम भाग्यवादी अपने को मानते हैं। भाग्य किसने बनाया? मेरे ही कर्मों का फल मुझको अगले जन्म में भाग्य के रूप में मिलता है। ये भी मेरी ही अपनी निर्मित है। ईश्वर तो केवल देने वाला है। वो पुरुषार्थ का मुझको अधिकार दिया है, कर्तव्य दिया है, लेकिन मैं अगर नहीं करता हूं तो जो मेरे कर्म का फल है, अच्छा भी होगा या बुरा भी होगा, वो अगले जन्म में मुझको भाग्य के रूप में मिलना है। तो धर्म हमको पुरुषार्थी बनाना सिखाता है। धर्म जो है ये मनुष्य की आत्मा में बसता है, ये आपके मेरे मस्तिष्क का विषय नहीं है। बुद्धि में तो मेरे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, हृदय में तो बसता है। तो जो मेरी आत्मा में बसता है उसका संबंध सीधा हार्ट से है, हेड से नहीं। और हम में से अधिकांश जब हेड स्ट्रांग होते हैं तो अपने हार्ट की सुनते नहीं है हम। और इसीलिए क्या होता है, सारे दुनिया के अंदर में विवाद होते हैं। धर्म वही होता है जो डिबेटेबल है। और डिबेट का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें परिवर्तन हो। डिबेट क्या, आप करिए और सत्य पे पहुंचिए। जो अंतिम सत्य होगा वो धर्म होगा, और इसीलिए उसको अंत में अनडिबेटेबल कहेंगे। आप जितनी भी मर्जी डिबेट कीजिए, अगर आप किसी मत और पंथ के ऊपर में डिबेट करना आरंभ करें तो बहुत जल्दी विवाद हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं। और इसलिए ये मेरा विनम्रता से कहना है कि सनातन धर्म वही है जो किसी भी विज्ञान के तर्क को उत्तर देने की सामर्थ्य रखता है। और धर्म सारी दुनिया का है, इसलिए सार्वभौमिक है। और शुरू से और आज तक है, इसलिए सार्वकालिक भी है। और किसने बनाया है? सर्वशक्तिमान ने बनाया है। और सत्य और न्याय अगर कोई है तो वो केवल सनातन धर्म। बाकी तो सबके अंदर में कोई ना कोई प्रेजुडिस होगा, कोई ना कोई उसके अंदर में मेरी सोच होगी, मैंने अन्याय भी हो सकता है। लेकिन अगर वास्तव में कोई अंतिम न्याय है तो वो क्या होगा? वो बिल्कुल विवेक के आधार पर होगा। वो केवल और केवल धर्म ही हो सकता है। धर्म जो है ये सूर्य के समान अटल है, ये दिए के समान टिमटिमाता हुआ नहीं है। जो सूर्य के समान अटल है, अपनी जगह आज तक है। सृष्टि के आदिकाल में सूर्य जहां थे, आज भी सूर्य वही है। आप अमेरिका में भी देखते हैं, आप उनको भारत में भी देखते हैं। और इसी कारण से, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो आधी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश रहता है एक समय में, आधी पे नहीं रहता। तो इसलिए आज सुबह और शाम का ये हमारा सारा विषय आ रहा। कर्म फल का भुगतान, इसके अंदर में बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म उसी को कहेंगे जो किसी भी कर्म के फल की क्षमा नहीं मांगता। और जहां पे क्षमा होती है, ईसा मसीह पापों को क्षमा कर देते हैं, खुदा जो है वो माफ कर देते हैं। और हमारे भी बहुत से पुजारी और पंडे मंदिरों में इतनी सामर्थ्यशाली हो गए हैं कि आप उनको जाके कहें कि पंडित जी ये मेरे से गलती हो गई है, वो कहेंगे इसका उपाय मैं बताता हूँ। क्या होगा कि भगवान आपको माफ कर देंगे। बंधुओं, ये धर्म नहीं है और सनातन धर्म नहीं है। और जब मैं धर्म की बात कहूं तो मान लीजिए कि धर्म केवल सनातन होता है। इसलिए धर्म के साथ सनातन लगाना ये रिचुअल नहीं है, ये नेचुरल है। क्योंकि धर्म वही है, केवल वही है जो सनातन है। तो उसके अंदर में किसी भी प्रकार से क्षमा का कोई संभव नहीं।
स्वर्ग नरक की बात करते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, ये सनातन धर्म नहीं है। स्वर्ग वही है जो दुनिया में रहते हुए आपको कोई विशेष सुख प्राप्त होता है, वो स्वर्ग है, जिसमें आपकी आत्मा, आपका शरीर सुख प्राप्त कर रहा है और आपकी आत्मा आनंद में रह रही है। दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, आत्मा आनंद का अनुभव करती है, शरीर सुख का अनुभव करता है। आप शरीर के सुख के साधन तो जुटाएं, लेकिन आपकी आत्मा में आनंद नहीं हो, ये हो सकता है। ऐसा बहुत घरों में होता है, परिवारों में संतानों ने माता पिता के लिए सब सुख के साधन जुटा दिए, लेकिन 2 मिनट उनके पास बैठ के बात करने का समय नहीं देते हैं। आप उन माता पिताओं से पूछिए, वो भले ही कितने भी सुख में अमेरिका में रह रहे हो या दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हो, भारत में भी रह रहे हो, उनकी संतान सुख तो दे सकती है, उनकी आत्मा को आनंद नहीं दे पा रही। तो क्या है धर्म? वो आनंद का विषय है। सुख मेरी सभ्यता का विषय है, आनंद मेरी संस्कृति का विषय है, और संस्कृति ही सनातन धर्म है। तो इसलिए पक्षपात रहित होके, जब मैं किसी के लिए घृणा नहीं रखता हूं, मैं किसी के लिए द्वेष नहीं रखता हूं, मैं सबको, प्राणी मात्र को अपने जैसा समझ के उसके साथ में प्रेम करता हूं, तो मैं सनातन धर्म का पालन करता हूं। और मैं किसी को काफिर कह के उसको दुनिया से उठाने की इच्छा रखता हूं, किसी को इनफाइडल कह के दुनिया में जीने लायक नहीं समझता हूं, तो ये धर्म तो नहीं हो सकता। जिसको मैंने जन्म नहीं दिया उसको मारने का मेरे पास क्या अधिकार है? ये सनातन धर्म की अवहेलना है। और सबसे पहली बात अंत में जो मैं कहना चाहता हूं कि केवल सनातन धर्म वो है जो मनुष्य मात्र की मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति कहते हैं आत्मा की आवाज को। ये कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, बुद्ध होती है और बिल्कुल एकदम पवित्र होती है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की भी आत्मा उसको कुछ बोल के कहती है कि देखो तुम ये जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन हम इतने बुद्धिमान होते हैं कि आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो आत्मा बोलना बंद कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर में माता पिता अपने बच्चे को जब तक बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, जब तक वो सुनता रहेगा, और जिस दिन वो बच्चा सुनना बंद कर देगा, माता पिता बोलना बंद कर देंगे। यही बिल्कुल हमारे साथ है। मेरे शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो मुझको नित्य प्रतिरोध चेताती है कि देखो मनुष्य के रूप में तुम्हारी जो मनुष्य के नाते कर्तव्य है वो ये है, तुमको क्या करना है, मैं चाहती हूं कि ऐसा ही करो। लेकिन मेरी बुद्धि उसके साथ में तर्क करके कहती है नहीं, ये सब करा तो मारे जाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि व्यापार तो वही है जिसके अंदर थोड़ा बहुत झूठ चलता है, और व्यवहार भी लोग ये कहने लगे हैं कि बिना झूठ के तो व्यवहार भी नहीं हो सकता। तो ये सब हमारे जो मस्तिष्क की विकृतियां हैं, इनको हमने प्रकृति मान लिया बंधुओं, तो इसीलिए हम अपने मत और पंथ को धर्म की संज्ञा देने लगे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। तो मैं अंत में केवल इतना ही आप लोगों को अभिनंदन के स्वरूप में कहना चाहता हूं कि हमने धर्म और मत के बीच में जो जाना है, तो एक बात ध्यान लीजिए, जब धर्म कहें तो उसको ये मत कहिए कि ये कौन सा धर्म है। धर्म केवल और केवल एक होता है और वह सनातन होता है, और वो संपूर्ण मनुष्य जाति का सारी सृष्टि में एक होता है। इसलिए किसी भी अन्य मान्यताओं को धर्म शब्द से संबोधित करने से जितना हम बचेंगे, हम सत्य के निकट होंगे। ओम। My God, very elaborate explanation and of Sanatana. Actually, you're talking about nature, about universal consciousness, awareness. I mean, there are so many things involved here. Let us see if anybody has questions. I should not. Yes, if there is any question, I will really please, welcome. anyone has any question, please unmute yourself and talk. देखिए, so far as things are unquestionable, I think it doesn't generate any question. But if at all something, so naturally it will be in addition to that. सौरभ, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आई जस्ट वांटेड टू से धन्यवाद एंड साधुवाद। आपने हमें शक दे इट वाज 1 मिनट भी अटेंशन कहीं और नहीं गया आपके टॉक के टाइम पे, सो उसके लिए जस्ट धन्यवाद एंड साधुवाद। I have never heard such an elaborate explanation. Not my doubts, except I think Patanjali, in his 190 Patanjali Yoga Sutra, has shown the way.
to go to मुझे remain क्वेश्चन है। Sanatana and go to Ishvara Pranidhan. देखिए, पतंजलि ने जो योग सूत्र बताए हैं, वो योग सूत्र सारे के सारे सनातन धर्म का ही एलाबोरेशन है। तो हाँ, ये तो मुझे सनातन धर्म तो ऐसा समझिए कि सनातन धर्म एक तरह का पूल है, एक रिजर्वायर है, जिसमें से पता नहीं कितने पंख निकले हैं, कितनी नदियां निकली हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ दर्शन हैं, 6 दर्शनों की हम बात करते हैं, वो 6 के 6 दर्शन सनातन के विभिन्न स्वरूप की व्याख्या करते हैं। भगवत गीता का उच्चारण ऐसा किया कि फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करते रहो। और आपने कहा तो कर्म तो करना चाहिए, हर एक लोग कर्म करता ही है, फल की अपेक्षा तो करनी चाहिए। लेकिन मेरी राय से ये इसलिए बताया गया है कि इंद्रिय जन्य जो कर्म है, इंद्रिय जन्य जो फल हम प्राप्त करते हैं, उसके वो न करें, क्योंकि हम अंत में क्या होता है, अंत में हम त्रिगुणातीत गुणों के परे जाते हैं, निर्गुण बनना चाहते हैं। इसीलिए उस अवस्था में फल की अपेक्षा होना ही नहीं होती, किसी फल की अपेक्षा नहीं होती। लेकिन जब इंद्रिय जन्य आदमी होता है और व्यवहार में होता है तो फल की अपेक्षा रखता ही है। तो भगवद गीता में इसीलिए वो कहा है, वो अंतिम अवस्था में जब आदमी जाता है तब गुणों को भी छोड़ता है, तब फल की अपेक्षा कहाँ रहेगी। तो फल की अपेक्षा उस अवस्था में रखनी नहीं चाहिए, इसीलिए वो कहाँ होगा, इस ऐसा हमारा मत है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने यह बनाया, प्रकृति और पुरुष तो सांख्यों का है। तो प्रकृति का निर्माण जो है ईश्वर ने किया, ईश्वर ऐसा करता है, ईश्वर पनिशमेंट देता है, ईश्वर। हम तो ब्रह्म जो मानते हैं, वो ब्रह्म जो है वो तो किसी में हिस्सा लेते नहीं है, वो निर्गुण है, गुणातीत है, वो किसी में सहयोग नहीं देते, उसमें कुछ गुण नहीं है। अगर उसमें कुछ गुण नहीं है तो गुण कैसे निर्माण करते हैं। ब्रह्म जब किसी में ईश्वर जो है ना, वो कल्पना जो ईश्वर की जो है वो नीचे वाली कल्पना है, वो अंतिम कल्पना नहीं हो सकती। परब्रह्म की कल्पना जो चेतना की कल्पना है, वो चेतना जो निर्माण नहीं करता, ब्रह्म निर्माण नहीं करता। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे वाली कल्पना है जो है वो। तो आप ईश्वर जो आप करते हैं कि ईश्वर ने सब निर्माण किया है, ईश्वर ने निर्माण किया है। जो हम अंतिम परब्रह्म जानते हैं वो तो गुणातीत है ना, वो कैसा निर्माण करेगा। हाँ, देखिए कुलकर्णी जी, आपने बहुत ही सुंदर शंका उठाई है और मैं उसका थोड़ा सा समाधान करने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो ये आपने जो बताया प्रकृति और पुरुष हम उसी ब्रह्म को ही कहते हैं। दूसरे आपने बताया कि वो गुणातीत है। देखिए, 2 तरह की बात होती है, हम ईश्वर को निर्गुण भी कहते हैं और सगुण भी कहते हैं जी। जब मैं ये कहता हूं कि वो ईश्वर निराकार है तो उसके अंदर में एक नेगेटिव वो लगाया है प्रीफिक्स। अनादि है, अनंत है, तो मैंने कुछ नेगेटिव का मतलब नहीं, तो जो कुछ मैंने उसके अंदर में नेगेटिव लगाया है उसके कारण से परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। अब मैं जिस चीज को उसके साथ में जोड़ने का, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, वो सार्वकालिक है, वो सार्वभौमिक है, ये क्या है, ये ईश्वर का सगुण रूप है। तो ईश्वर का ही, जिसको हम ब्रह्म कहेंगे, ब्रह्म इसलिए कहेंगे कि ब्रह्म जो है वो अंतिम सत्य है जी। और इसीलिए उसका बनाया हुआ ब्रह्मांड कहलाता है। जी। तो जो ब्रह्म है वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है। निर्गुण का मतलब जो उसमें नहीं है, जैसे वो किसी भी उसमें शरीर में नहीं आता है, इसलिए कहा गया कि वो जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है, वो किसी भी प्रकार से नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता है। तो बहुत से संस्कृत के वेदों के मंत्र हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, क्लिष्ट हो जाता है। मैं केवल उसकी सरल भाव बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे सगुण और निर्गुण में एक बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है कि जब हम साकार की पूजा करते हैं तो हम कहते हैं हम सगुण की पूजा कर रहे हैं, जब हम निराकार की उपासना करते हैं तो हम कहते हैं हम निर्गुण की करते हैं। मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा भ्रांतिपूर्ण वक्तव्य है, क्योंकि हम एक ही समय में निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना करते हैं। जो परमात्मा है उसके अंदर जो जो गुण नहीं है, अगर वो अनादि है तो ये उसका
ये निर्गुण तो हो सकता है, पर ये कहें कि उसमें गुण नहीं है, ऐसा नहीं। उसके अंदर ये वाला गुण नहीं है कि जिसका आदि हो और जिसका अंत हो, वो अनादि है। तो निर्गुण का यहाँ पे केवल इतना ही भाव है कि ईश्वर में जिन जिन चीजों को नहीं मानते हैं, निराकार का मतलब क्या हुआ, उसका आकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो है, आकार नहीं है। तो हमने उसको केवल क्वालिफाई किया है, और क्वालिफाई किया है तो जिन जिन हमने नेगेटिव टर्मिनोलॉजी के साथ क्वालिफाई किया है वो उसकी निर्गुणता है, और जिस जिसको हमने उसके साथ जोड़ा है, जिसके साथ वो संयुक्त है, वो उसका सगुण है। दूसरी बात आपने कहा इंद्रिय जन्य हमारे जो इच्छाएं हैं, जी देखिए हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो हम सब जानते हैं कि ये 5 हमारे तत्व हैं, और हमारे जी ये सिर पे ही विद्यमान है, इसलिए इनको सप्तऋषि भी कहा। मेरी आंखें हैं, ये देखती हैं, यही आभास करती हैं कि क्या चीज है। अगर मेरी आंखें बंद मैं करूं तो मेरे को सारी सृष्टि ओझल हो जाती है। कान मेरे सुन रहे हैं, तो जितने मेरे सेंसरी ऑर्गन्स हैं यही मेरी एक प्रकार से, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो 5 इंद्रियां मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 मेरी कर्मेंद्रियां हैं, और उनके ऊपर में एक उभय इंद्रिय है मन, जो उन सब पे 10 पे शासन करती है। इसलिए उसको सारथी कहा कि मेरे ये जो 10 वो हैं, अश्व हैं जो मेरे रथ में जुड़े हुए हैं, आत्मा रथी है, 10 घोड़े जुड़े हुए हैं, ये 10 मेरी इंद्रियां हैं, और उसके अंदर में जो बैठी मेरे वो है वो सारथी। तो प्रश्न ये उठता है कि जब मनुष्य का शरीर है या किसी भी प्राणी का शरीर है, तो इस प्राणी के शरीर की अपनी कुछ नैसर्गिक नेचुरल नीड्स हैं, जिनको हम कहेंगे कि स्वाभाविक प्राकृतिक उसकी आवश्यकताएं। उन आवश्यकताओं की स्वाभाविक है, जो इच्छा प्रकट होगी तो वो किसी सेंसरी ऑर्गन से ही होगी। आपको प्यास लगेगी तो आपकी जो मुंह की जिह्वा है वो थोड़ी सी शुष्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर को पानी की आवश्यकता है। लक्षण क्या है कि मेरी जीभ सूख रही है। तो ये क्या हुआ, ये मेरी इच्छा का प्रश्न नहीं है, मेरे अस्तित्व का प्रश्न है। हम उसको लौकिक भाषा में कहेंगे कि मेरी इच्छा है पानी पीने की हुई। हम 2 तरह की इच्छाएं रखते हैं, कुछ तो हमारी आवश्यक इच्छाएं होती हैं, कुछ हमारी अपने सुख सुविधा के लिए बढ़ाने की नैमित्तिक इच्छाएं होती हैं। तो इंद्रिय जन्य का अर्थ है जो मेरी नैमित्तिक इच्छाएं हैं, जिनके बिना भी मेरा काम चल सकता था, वो यदि अगर मैं अपनी बढ़ाता जाता हूं तो सबसे पहले तो मैं अपने सुख की वृद्धि नहीं करता, उसका विनाश करता हूं। क्योंकि मेरा सुख घटता जाता है जितनी मेरी इच्छाएं बढ़ती है, और जितनी मेरी इच्छाएं कम होती जाएंगी। जैसे अभी आपने सबसे कहा ना इंद्रियातीत, इंद्रियातीत ईश्वर केवल परमात्मा हो सकता है। जिसके जी पास शरीर होगा वो इंद्रियातीत नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक इंद्रिय हैं तो अतीत कैसे हो जाएगा। और परमात्मा चूंकि शरीरधारी नहीं है इसलिए वो इंद्रियातीत है, इसलिए उसकी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा का बात, केवल परमात्मा का अस्तित्व इन्हीं कारणों से हम मानते हैं कि जो चीजें किसी भी प्राणी की सामर्थ्य में नहीं थी, किसने बनाई है, तो स्वाभाविक इच्छा जाती है कि ब्रह्म ने बनाई है। और जब हम ये कहने लगते हैं, मैं अगले व्याख्यान में आपको शंकराचार्य का विषय भी बताने वाला हूं कि हमारे आदि शंकराचार्य ने जब ब्रह्मास्मि कहा, उसके पीछे भी उनका भाव क्या रहा होगा, इसकी चर्चा आज करने का मेरे पे समय नहीं है, लेकिन मैं अगले बार इस विषय को जरूर स्पष्ट करूंगा। पर मैं आपसे अंत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गीता में श्री कृष्ण ने केवल इतना ही कहा है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते, देखिए अधिकार की बात हो रही है, अब मैं स्पष्ट कर रहा हूं अपने विषय को। आपका अधिकार कर्म करने पर है, जी न उस कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां जी का अर्थ है नहीं, कदाचन का मतलब कभी भी। फल पर क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, जिसकी पहले बात की। जी अधिकार शब्द को एक बार प्रयोग किया है, लेकिन इसका उपयोग 2 बार हो रहा है। कर्म करने पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। इसमें इच्छा की बात कहां आई है, बताएं कोई भी गीता में भी कहां है इन शब्दों में। उन्होंने सीधा ये कहा है कि आपका कर्म करने पे अधिकार, मां का मतलब नहीं, फलेशु फल पर, कदाचित किसी भी प्रकार से, केवल बताया यह है कि आपका अधिकार नहीं है फल पर, बस। और ये क्या है, हमारी कर्म फल की
जो व्यवस्था है ये उसको पुष्ट करती है। आपने कर्म किया, आपका अधिकार था, फल क्या मिलेगा ये आप नहीं कह सकते। ये तो जो ईश्वर ने उस कर्म के अनुसार फल निश्चित किया वो मिलेगा। आपके लिए केवल एक ही विकल्प है, आप उसमें संतुष्टि का अनुभव करें। जब संतुष्टि का अनुभव नहीं करते तो लोग क्या करते हैं, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो न्याय जो है वो मनुष्यों के हैं, ईश्वरीय न्याय नहीं है, इसलिए उसमें संतुष्टि नहीं होती है। और अधिकार भी है उसकी अपील करने का। ईश्वर के न्याय में ना आपको अधिकार है ना आपको अपील करने का, आपके पास में कोई विकल्प। बहुत सुंदर। सरिता जी, any question you have? सरिता जी? No, I don't have a question. I just want to thank you. बहुत सुंदर बोले हैं आप, बहुत इंफॉर्मेशन मिली हमको। Yeah. Anybody else has any question? Any clarification? Anybody wants to ask? देखिए, जब तक कोई पूछे मैं 2-3 परिचय आपको देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र योगेंद्र वधवा जी अमेरिका में हैं, आजकल भारत में रहते हैं। हेलो वधवा जी, वो जुड़े हुए हैं। एक हमारे हिंद पुनरुत्थान संघ के मेरे सहयोगी हमारे ब्रिगेडियर लुक टुके जी, जो हमसे सीनियर मोस्ट हैं, वो इसमें जुड़े हैं। मुकुंद पुराणिक जी हमारे हिंद पुनरुत्थान के अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। एक हमारे मंत्री हमारे आर्य समाज के, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, SK शर्मा जी, वो जुड़े हुए हैं। सौरभ दानी जुड़े हुए हैं अमेरिका से। अन्य भी मैं कुछ और नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके निमंत्रण पे भी और हमारे भी अनुरोध पे काफी लोग जो जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे श्याम थत्ते जी है यहाँ, हमारे नेबर है पूना से, लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम थत्ते जी आए हैं। You have any questions, थत्ते जी? बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने और बहुत पसंद आया एकदम। बहुत बढ़िया, थैंक यू। One final point, we can make it next time. You know, my feeling is that this Manusmriti or even earlier things introduced jati vyavastha, caste system. I mean, it existed there. It existed, and the purpose of recognizing these was the message you are giving: do your karma. So wherever you are, in whichever situation you are, do your karma with the same message of karmanyevadikaraste. Am I correct that Jati Samstha's initiation or idea came about to make people aware in different professions, whichever profession you are, do your karma with this position, you should do your karma. Yeah. Am I right? I mean, can we interpret? Anil Bhate, yeah. I would like to interrupt for 1 second. Sure. Yes, I have attended 3 lectures by Gupta ji. In fact, that was the time when I found him, I heard him, and then I started talking to him on the phone. So let us have another lecture and finish this subject of Sanatana. And then I'm going to request Gupta ji to give another lecture on, maybe one lecture which can combine his 3 talks, one on Varna, one on Jati, and one on Kula. So all these 3 things, we can arrange one more lecture later on and request Gupta ji to talk about that as well. So that's the interruption. पांडे जी, हाँ, तो गुप्ता जी मैं प्रणाम करता हूँ आपको। लेकिन देखिए, मैंने बहुत सारे महात्माओं का लेक्चर सुना है। अब कोई गीता पे भाष्य करके यही सनातन धर्म है, कोई उपनिषदों के बात करके यही सनातन धर्म है, तरह तरह के विषय लेके वो सनातन धर्म की बात करते हैं। यानी कि बहुत सारे समाज में इसी तरह के मतांतर जो है होते रहते हैं। तो असली सनातन धर्म क्या है और इन सब को हम इकट्ठा कैसे कर सकते हैं कि हजारों मतों से हम एक धारा से, एक रास्ते से कैसे आ सकते हैं? देखिए, मैं कुलकर्णी जी आपको इस विषय पर निवेदन कर दूं। हम लोग अर्थमेटिक में 2 टर्म्स जानते हैं। एक होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक होता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
जी तो मान के ये चलिए कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है एक नया मत, जिसको हम मतांतर कहेंगे। जी एक फिगर को कितने मैक्सिमम उसके फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, जो लोएस्ट है कि बस आगे नहीं हो सकता, वो लोएस्ट है, वो एलसीएम है। और आज हमारे यहाँ यही हो रहा है। तो क्या है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो धर्म है, और धर्म केवल सनातन होता है। बार बार ये मैं बात बता रहा हूँ, सनातन धर्म कहते हैं तो वो केवल उसको कंप्लीट कर रहा है टर्मिनोलॉजी को। धर्म होता ही सनातन है, और जो सनातन नहीं है वो धर्म नहीं होता। इस बात को भी अगर समझने की चेष्टा करें तो सब समझ आ जाएगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी भी धर्म नहीं होता। इसलिए करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना। और जिस दिन आप HCF ढूंढ लेंगे, इट विल बी ए सॉर्ट ऑफ ए सीलिंग, सॉर्ट ऑफ एन अम्ब्रेला, जिसके नीचे सब कुछ को एग्जिस्ट करेगा। तो सब मत मतांतरों को अगर इकट्ठा रहना है तो उनको ऐसे सूत्र ढूंढने पड़ेंगे जो उनके बीच में कॉमन होंगे। जी जो कॉमनिटी है वो जिंदा रखती है, अनकॉमन जो है उससे विवाद होता है। जी। और सनातन सनातन तरह क्या है, वो सनातन के पुराना प्राचीन। नहीं नहीं, देखिए मैं फिर वही बताता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा फिर निवेदन करता हूँ। कई चीजों में हो सकता है कि आप और मैं एकदम सहमत नहीं हो, लेकिन थोड़ी चर्चा करेंगे तो सहमति बन जाएगी। पुराण का अर्थ है पुराना स्क्रिप्चर। लेकिन वो अगर तो समझ पुराण की, अच्छा से, लेकिन पुराण का अर्थ वो जो हमने, जिनको हम ये 18 पुराण कह रहे हैं, जी, ये प्राचीनतम नहीं है। नहीं प्राचीनतम तो केवल नहीं, वेद है। ये वेदों से लेकर भी, यानी कि ईस्वी सन 5-6 से तक आए हैं, यानी कि पुराण भी नया बिल्कुल नया बिल्कुल, है। ये मैं वही वो बोल तो रहा हूँ, बाद में आए 18 हैं। पुराण है, 18 ओपू पुराण है, और बहुत सारे पुराण है। बहुत सारे, 108 की बात है वैसे तो, और लेकिन उसमें बहुत 18 सारे वो हैं जो कि हम लोग जानते हैं। लेकिन और उसमें इनको सारा, पुराण हम इसलिए कहते हैं कि ये भी बहुत पहले लिखे गए हैं, और और इन सारा पुराणों में भी जी जी सारी सारी, और उसमें भी मैं, सारा घुसड़ा गया है अपने लाभ के लिए। देखिए मैं अब किसी भी उस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा। आई एम नॉट कास्टिंग एनी एस्पर्शंस ऑन एनी नहीं, वो स्क्रिप्चर, सत्य है ना, सत्य है। बट आई डू रियली मीन दैट नथिंग इज कंपेरेबल टू वेद। यस। और इसीलिए वेद को स्वतः प्रमाण कहा गया है कि ये, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और इसलिए नहीं, कोई भी ग्रंथ जितना वेदों के अनुकूल है वो मान्य है, जितना वेदों से अनुकूल नहीं है वो मान्य नहीं है। यही स्थिति उपनिषद की भी है, यही स्थिति दर्शन की भी है, स्मृति की भी है, ब्राह्मण ग्रंथों की भी है। मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। तो आप मुझे अगली बार अवसर अभी देंगे तो मैं सबके बारे में स्पष्ट करूंगा। गुप्ता जी, दर्शन भी 9 है, और वो 9 मत है, वो भी 9 मत है। वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि 6 उसमें आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं। नास्तिक है, बराबर है। और वेद वेद जो है वो कठिनता ऐसे इसीलिए ब्राह्मण, आरण्यक, इसके बाद उपनिषद, ये चले आए हैं। देखिए मैं इसमें कुलकर्णी जी मैं स्पष्ट कर दूं, आरण्यक किसको कहते हैं? जो अरण्य में बैठ के, अरण्य का मतलब जी, है वन, वो समझता हूँ, मैं समझता वन हूँ। प्रदेश में गुरु शिष्य परंपरा में जो व्याख्यान हुए हैं वो उपनिषद हैं या आरण्यक हैं। जी जी जी। दर्शन शास्त्र आपने बताया 9 ही हैं, 6 आस्तिक हैं, 3 नास्तिक जी हैं। जी जी स्मृति क्या है? ये कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो विभिन्न टाइम पर बनाई गई हैं, सब स्मृति बन गई हैं। तो ये सब क्या है? ये डेरिवेटिव्स हैं। नहीं, डेरिवेटिव किसके हैं? वेद के। सर, मेरा कहने का मतलब यही है कि इतने हजारों मतों मतांतरों है, तो आज हम हिंदू धर्म, या धर्म तो ऐसा, हिंदू है धर्म, ऐसा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू इस शब्द पे भी बहुत सारे मत मतांतर है, और धर्म शब्द भी मत मतांतर है। देखिए अभी लेकिन मैं हम चलते चलते ये भी बता दूं कि ये जो हिंदू शब्द हम बोलते हैं ये भी पुरातन नहीं है, सनातन शब्द है, आर्य। बराबर है, वो सिंधु से आया है, हमारी इसीलिए वो पहचान आर्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वो आर्य जो है, तिलक जी ने भी कहा है, लोकमान्य तिलक जी ने। आर्य भी जो शब्द है ना वो एडजेक्टिव है, आर्य भी नाउन नहीं है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्ते गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर अभिव्यक्ति आपने की, और मुझे बहुत पसंद आया
मैं केवल उन लोगों, जो आपने वेद की चर्चा की, उसके बारे में मैं 2 सेंटेंस, कास्ट कल्चर एंड सोशलिज्म जो स्वामी विवेकानंद ने पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है उन्होंने, we must remember that for all periods the Vedas are the final goal and authority, and if the Puranas differ in any respect from the Vedas, that part of the Puranas is to be rejected without mercy. तो वेद की बात तो स्वामी विवेकानंद भी करते हैं, और मैं चाहूंगा कि रवि जी और भी YouTube चैनल में आए और इस चीज का व्यापक प्रचार हो, ऐसी मेरी कामना है, इच्छा है, प्रार्थना है। धन्यवाद। ये तो रमेश जी जब भी अवसर देंगे, जब आदेश देंगे, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, ना करेंगे, जल्दी ही करेंगे, ठीक। और जो अभी अनिल जी ने कहा वर्ण, जाति और कुल, इस विषय पे मैं आपके साथ बहुत कुछ साझा करने की इच्छा रखता हूँ। अच्छा, नहीं, जरूरत है, उसकी बहुत जरूरत है, because there is so much misunderstanding and misinformation about it. So very. मेरा अपना अनुभव है, एक बात बताना चाहता हूं मैं। मेरा अपना अनुभव है, अपना कर्म करते रहो, आपको फल जरूर मिलेगा और आनंद मिलेगा उसके साथ। लेकिन समझने की जरूरत है कि कर्म क्या है, कर्म की क्या डेफिनेशन है, कर्म क्या होता है, ये अपने इंडिविजुअल को समझना चाहिए, तभी वो कर्म बराबर करता है। कर्म को उल्टा पुल्टा अगर वो नहीं समझेगा और कुछ उसका मतलब निकालेगा और हर एक चीज को बोलेगा मेरा कर्म है, तो वो समझने की जरूरत है कि कर्म यानी क्या है और वो कैसे करना चाहिए। देखिए, इसमें मैं आपको चलते चलते, रमेश जी आपकी अनुमति हो तो एक वाक्य बोल दूं। कर्म और धर्म ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। बराबर है। मैं अपना कर्म धर्म के अनुसार अगर करता हूं तो मैं एक प्रकार से धर्म की पालना कर रहा हूं। तो धर्म पहले भी है कर्म के और कर्म के बाद भी है। मैंने धर्म के अनुसार कर्म किया तो आनंद की ओर जाऊंगा, और मैंने धर्म के बजाय अधर्म के अनुसार कर्म किया तो मैं विनाश की ओर और दंड की ओर जाऊंगा। ये पर कारण क्या बना? मेरा कर्म बना। तो कर्म और धर्म ये दो अलग चीज नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म क्या है? बिल्कुल। और वो है अवश्य भोक्तव्यम शुभा, जो भी कृतम शुभा शुभम। जो मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, भोग तो निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका रिजल्ट वैसे ही निकलने वाला है। बस ठीक है। ये विषय बहुत लंबा है, आप जब जब मौका देंगे, जब जब जुड़ेंगे आपके साथ। और अनिल जी का आभारी हूँ मैं, आपके साथ मिला। कृष्ण कर्म और शुक्ल कर्म। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आउटस्टैंडिंग। मैं एक निवेदन कर दूं आपको, किसी को प्रश्न अगर कोई लिखित में भेजना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं चेष्टा करूंगा कि मैं उसका समाधान दूं आपको। थैंक यू। Very nice. Dhanyawad, Gupta ji again. Thanks everyone, and we will have another meeting to take this subject forward, especially universalism. You know, we are, I think, गुप्ता जी एक दो विषय उसमें है कि बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट. To understand this Sanatan Dharma, to be with Sanatan Dharma, you have to work with intellect. So that you have to get it. ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, all these three elements, they have been integrated only into our soul. Exactly. And that issue has to be, and ultimately, जैसे अभी आपने बोला है कि किसी समय में हम ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मैं यूनिवर्स किसको कहता हूँ. अगर इसको भी आप थोड़ा सा एनालाइज करें ना, इट इज यूनिवर्स. वर्स मीन्स एक कविता. सारी सृष्टि में जो एक कविता है, एक काव्य है, और इसलिए कहा गया है देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यत. देवों के काव्य को देखो, ना कभी बूढ़ा होता है और ना कभी भी जो है ये कमजोर होता है. तो ये देवों का वही तो है जिसको हम ब्रह्मनाद कहते हैं. नासा ने कहा है कि सूर्य के चारों ओर जो है एक ओम नाद चल रहा है. ये यूनिवर्स ही तो है. वर्स का मतलब कविता. रिदम. Very good. So thank you everybody.
Thank you, Gupta ji, once again. बहुत धन्यवाद. थैंक यू थैंक यू Thank you. सभी का प्रणाम, सभी का प्रणाम. And we'll announce the next presentation very soon. हाँ, please. Thank you so Good much. night.